Hello everyone, this is the third lecture for Science and Technology PT 365, and in this lecture we would cover space technology, as in last we had covered this IT and computer part. In this video we will deal with space and technology. We have these topics in hand to cover, and also we would cover the updated two booklets which also have some more parts of space technology. Alright, so let's begin with the first topic of this space technology. So the first topic is about Mars Orbiter mission. What is this Mars Orbiter mission? ठीक है, it was the India's space craft, ठीक है, जो कि मार्स पे भेजा गया था. आपको मार्स से समझ में आ रहा है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया का स्पेस क्राफ्ट था एंड रिसेंटली इट हैज़ लॉस्ट कम्युनिकेशन विद द ग्राउंड स्टेशन. ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे? इट्स ऑब्जेक्टिव वॉज टू एक्सप्लोर मार्शियन सर्फेस. ठीक है, वहाँ की सर्फेस के फीचर्स को ऑब्जर्व करना, एक्सप्लोर करना, एंड इसके अलावा वहाँ की मिनरलॉजी को स्टडी करना, वहाँ के एटमॉस्फेयर को स्टडी करना. ये उसके कुछ साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स थे. ठीक है, ये आपको ब्रॉड आइडिया होने चाहिए. यूपीएससी आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस मॉम और मंगलयान और मार्स ऑर्बिटर मिशन, बट यू शुड हैव अ ब्रॉड आइडिया ऑफ दिस. ऑलराइट, so you should know the key facts about this mission, where questions are formed. So the question would be formed around these facts. ठीक है, you should remember these facts. For instance, which launch vehicle was used? It was PSLV C-25 and it was launched in 2013. Don't get confused that it is recently been launched, because many students think this mission was launched recently, but it is not true. Recently we had sent mission on moon like Chandrayaan 2, and we are working on Chandrayaan 3 also, but this Mangalyaan mission was launched in 2013. ठीक है, it was India's first interplanetary mission and also the only. Still, mission made India the first Asian country and the fourth in the world. मतलब कि एशिया में India was the first to send an mission on another planet, that was Mars. इंडिया से पहले किसने किसने भेजा? That is Russia, US and EU. You should remember this thing. And it carried an 850 kg of fuel with 5 science research payloads. And it is also spacecraft is tracked by the Indian Deep Science Network located near Bangalore. ठीक है, तो these first three facts are much more important for the prelims point of view. Alright, and these were some of the payloads. You can go through these names. Not necessarily you need to remember every payload's name, but you should have basic idea about what kind of payloads are there on a mission like this interplanetary mission. Like there would be a camera, there would be a photometer, there would be a thermal infrared imaging spectrometer. So if these payloads come as an option, you should be able to solve that. If you have basic idea about these things, payloads, then you would be easily able to answer the question. This is not the time to sit and mug up these all names, but you should have basic idea about these payloads. All right, so what were the technological achievements of this mission? ठीक है, this is the important part, because UPSC would ask about the achievements, about the success of this mission. ठीक है, so understanding of the composition of several gases in Martian exosphere, including discovery of suprathermal argon 40 atoms. ठीक है, first thing remember this thing, suprathermal argon 40 atoms. ठीक है, it also photographed for the first time the far side of Diomus, one of the natural satellites of Mars. ठीक है, remember this name. Then mission captured the time variation of Martian polar ice caps. Next thing to remember is this thing. ठीक है, other than this, what else missions have been sent to Mars is Perseverance of NASA. This has recently been in news, so you should know this. Next is Hope mission of United Arab Emirates, UAE का Hope mission है, and Tianwen-1 of China, and Japan का Mars Moon exploration mission. So how question would be formed around this? They would give this Perseverance, this Hope, and Tianwen-1 and Mars this. ठीक है, okay. They would write here UAE, they would write here USA, they would write here China, and they would write here Japan. This would be the question. Option would be only one pair correct, two pairs correct, three pairs correct, and four pairs correct. So you know this Perseverance mission is of USA and not UAE. So this option would, this statement would be wrong, and Hope mission is of UAE not USA. So this statement again would be wrong. So I am telling you how question can be formed around this news article. ठीक है, so you should remember this upcoming developments also. So this is what it is.
So let's, as I said, NASA's Perseverance rover was very much in news, so you should know a little about this also. First of all, you should know this basic fact is this: Perseverance rover is a mission of NASA for Mars exploration program. All right. It placed a titanium tube containing a rock sample on the surface of Mars. ठीक है. Other than this, you should know about this. This related news: Mars oxygen in situ resource utilization experiment has produced oxygen at Mars with components from planet's atmosphere. और ये किसने भेजा था? ये MIT यूनिवर्सिटी जो US का है, उनके तरफ से ये भेजा गया था ऑन दी नासा's परसिवरेंस रोवर. ठीक है, यू शुड रिमेंबर दिस थिंग. एंड earlier we were talking about this titanium tube जो rock sample जो contain करता, that is located at 3 forks. First such sample depot on another world. ठीक है, जहाँ पे ये locate किया गया है, जहाँ पे रखा गया है, that is known as 3 forks. Next important thing is about PSLV, the Polar Satellite Launch Vehicle. ISRO uses these. Alright, and this is also known as the horse engine of ISRO. So you should know about this. Recently 55th mission has successfully launched which contained 3 Singaporean satellites also. All right, and it was the second commercial mission of NSIL. We would later go on what is NSIL. We would read about that also, but for now you know that it is the second commercial mission of New Space India Limited. ठीक है, तो इसरो ने जो लॉन्च किया है, it also achieved successful launch of PSLV orbital experimental module. UPSC can ask you question around what is POEM. ठीक है, इट इज़ रिलेटेड टू स्पेस एक्सप्लोरेशन, इज इट रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इज इट रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, लिटरेचर, और नन ऑफ द अबव. सो योर आंसर वुड बी स्पेस एक्सप्लोरेशन. ऑलराइट, so what is POEM? It is a platform which allows in orbit scientific experiments using the 4th stage or the final stage of PSLV. ठीक है, these are the rockets, these are the launch vehicles of ISRO, the SSLV, PSLV, GSLV and LMV3. We will go on to read about these, but for now remember this, we are dealing about PSLV and POEM, this platform which allows in orbit scientific experiments using the 4th stage of PSLV. ठीक है, remember this thing, what is POEM. So let's learn something about all these launch vehicles. First is SSLV. This stands for Small Satellite Launch Vehicle. As the name indicates, it would deal with small satellites. ठीक है, तो इसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी होगी? इट वुड कैरी मिनी, माइक्रो और नैनो सैटेलाइट्स. 10 से 500 kg मास तक की सैटेलाइट्स को ये कैरी करेगा. ठीक है, एंड टू एन ऑर्बिट ऑफ 500 किलोमीटर्स. दिस द फैक्ट यू विल हैव टू रिमेंबर कि कितना लोड कैरी कर सकता है, मिनिमम एंड मैक्सिमम. ऑलराइट, इट कैरीज 10 to 500 kg ऑफ मास टू अ रेडियस ऑफ अराउंड 500 किलोमीटर ऑर्बिट. ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए. First thing about SSLV, and stages also you will have to two things you will have to remember in this: the payload capacity, the orbits, and second thing is the stages. In how many stages does it work? The launch vehicle works. So SSLV works in 3 stages. ठीक है, 3 stage solid propulsion stages and liquid propulsion based velocity trimming module as a terminal stage. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट है आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, द मोस्ट यूज लॉन्च व्हीकल ऑफ इसरो. इट इज़ अ 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल. पहली और तीसरी स्टेज जिसमें सॉलिड स्टेज होती है, एंड सेकेंड एंड फोर्थ इज ऑफ लिक्विड. SSLV में 3 स्टेज होती हैं, सॉलिड प्रोपल्शन स्टेज होती हैं. लेकिन PSLV में क्या होती है? फर्स्ट एंड थर्ड स्टेज जो आपकी होती है, दैट इज सॉलिड, एंड सेकेंड एंड फोर्थ इज लिक्विड. जस्ट रिमेंबर दिस, इट इज़ अ मिक्सचर. ठीक है, इवन वाला आपका लिक्विड एंड ऑड वाला आपका सॉलिड है. UPSC वुड नॉट गो दैट डीप, बट स्टिल यू रिमेंबर इट. इफ बाई चांस इट आस्क्ड, you should remember this. The first thing, it is 4 stage, and second thing, it uses both solid and liquid. And how much payload capacity it has? It has 1750 kg to sun synchronous polar orbits. All right, we'll also read what are these orbits in a while. For now you remember this, that 1750 kg, लगभग 1750 kg it can carry to sun synchronous polar orbits, and 1425 kg into geosynchronous and geostationary orbits. ठीक है, as these are far away, so lesser capacity. All right, next is GSLV Mark II. ठीक है, it is also a 3 stage launch vehicle. First is solid, second is liquid, and third is cryogenic upper stage. ठीक है, and it can carry
2250 into geosynchronous transfer orbits, ठीक है. And if you are sending into low Earth orbits that is much nearer to Earth, it can carry around 6 ton. All right, 6 ton. Remember this thing. जितना करीब भेजेंगे उतना ज़्यादा वेट भेज सकते हैं, जितना दूर भेजेंगे उतना कम वेट भेज सकते हैं. वेरी सिंपल लॉजिक, ठीक है. लास्ट द मोस्ट हैवी व्हीकल जो है इसरो का, दैट इज GSLV Mark 3, ठीक है. इट विल ऑल्सो बी यूज, LMV-3 वुड ऑल्सो बी यूज फॉर सेंडिंग गगनयान एंड इट हैज़ ऑल्सो बीन यूज फॉर सेंडिंग चंद्रयान 2. रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है. तो 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है. इट इज़ फर्स्ट लिक्विड, सेकेंड सॉलिड, थर्ड क्रायोजेनिक. अच्छा देखो, GSLV Mark 2 में क्या था, पहला सॉलिड था, दूसरा लिक्विड था. इसमें क्या है, पहला लिक्विड है एंड सेकेंड स्टेज इज सॉलिड, ठीक है. So just remember these things, that it is 3 stage and it is like solid, liquid and cryogenic. Just remember this thing for prelims point of view. In mains you will have to dig deep, but this is not the time to read more about mains topics. Just remember that much information, that would be sufficient to mark the correct option in the upcoming 28th of May's exam, ठीक है. And it can carry 4 ton into geosynchronous orbit and 8 ton into low earth orbit, ठीक है भाई. क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, पास है लो अर्थ तो इट कैन कैरी अराउंड 8 टन एंड जियो सिंक्रोनस दूर है सो इट कैन कैरी 4 टन, ठीक है. इट इज़ द मोस्ट, इट इज़ द हैवी व्हीकल यू कैन से विच कैन कैरी द मोस्ट हैवीएस्ट पेलोड, ठीक है. नेक्स्ट व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, वी विल टॉक अबाउट ऑर्बिट्स, ठीक है. तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स क्या होते हैं. फर्स्ट थिंग, इट जियो सर्कल और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो जिसको शॉर्ट में बोलते हैं हम, इसमें क्या होता है, सैटेलाइट सर्कल्स अर्थ अबाउ द इक्वेटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है. वेस्ट से ईस्ट में सर्कल करती है अराउंड द इक्वेटर, ठीक है. तो जब अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट तो ये सर्कल अराउंड करती है एंड इट मेक्स द सैटेलाइट इन जियो अपीयर टू बी स्टेशनरी ओवर अ फिक्स्ड पोजीशन. क्योंकि ये इक्वेटर के ऊपर रहती है वेस्ट टू ईस्ट और अर्थ का रोटेशन भी हो रहा है, दैट इज वाई इट अपीयर्स टू बी स्टेशनरी ओवर अ फिक्स्ड पोजीशन. आप जहाँ पे देखेंगे आपको लगेगा कि इट इज़ देयर ओनली, इट इज़ फिक्स्ड, इट इज़ नॉट मूविंग, बट इट इज़ एक्चुअली a satellite, so it would obviously move around, ठीक है. नेक्स्ट इज लो अर्थ ऑर्बिट, लियो, ठीक है. लियो में वन फैक्ट यू शुड रिमेंबर दैट जो आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है दैट इज इन लियो, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में. एन ऑर्बिट दैट इज रिलेटिवली क्लोज टू अर्थ सरफेस, ठीक है. इट इज एन एल्टीट्यूड ऑफ लेस देन 1000 किलोमीटर, मतलब 160 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर तक के ऑर्बिट को हम बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट. मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट लो अर्थ ऑर्बिट इज, फर्स्ट इज दैट इट इज नियरेस्ट टू द अर्थ, सेकंड इज दैट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज लोकेटेड वेयर इन लो अर्थ ऑर्बिट और लियो, ठीक है. पोलर ऑर्बिट क्या होती है, पोलर ऑर्बिट में जो यूजुअली ट्रैवल पास्ट अर्थ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जैसे कि उसमें जियो में वेस्ट टू ईस्ट चलता था, इसमें नॉर्थ टू साउथ चलता है एंड अराउंड दी पोल्स, ठीक है. यू शुड रिमेंबर दिस. पोलर है तो ऑब्वियसली समथिंग इट वुड बी रिलेटेड टू पोल्स एंड नॉर्थ टू साउथ. पोल्स कहाँ होते हैं, नॉर्थ और साउथ में, तो रिमेंबर लाइक दिस. नेक्स्ट इज सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, SSO. इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ पोलर ऑर्बिट. सैटेलाइट्स इन SSO ट्रैवलिंग ओवर द पोलर रीजन्स आर सिंक्रोनस विद द सन. जैसे ये आपका था, इसमें आपको स्टेशनरी दिखता था अर्थ, आपको स्टेशनरी आपको दिखता था सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू अ पोजीशन ऑन अर्थ. यहाँ पे क्या होता है, इसकी सिंक्रोनस स्पीड थी अर्थ के साथ, इसकी है सिंक्रोनस विद द सन, ठीक है. रिमेंबर दिस. जियो स्टेशनरी है तो वहाँ पे आप अर्थ पे रह के आप जो है सैटेलाइट को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको लगेगा सैटेलाइट फिक्स्ड है. यहाँ पे इट इज़ सिंक्रोनस टू द स्पीड ऑफ सन, ठीक है, सिंक्रोनस टू द सन. जस्ट रिमेंबर दिस. ट्रैवलिंग ओवर द पोलर रीजन्स एंड आर सिंक्रोनस विद द सन. दिस इज द कीवर्ड, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा. ऑलराइट. Next is Navik mission. What is this Navik? Navik first of all stands for Navigation with Indian Constellation. अच्छा, इस पे जब ये IRNSS कहलाया जाता था 2017 या 16 में UPSC ने इस पे एक क्वेश्चन भी पूछा था, ठीक है. कहाँ से क्वेश्चन पूछा था मैं पहले आपको वो बता दूँ. फर्स्ट UPSC आस्क्ड दिस थिंग. 4 सैटेलाइट नाविक मिशन, तब IRNSS था तो वो बोला था 4 सैटेलाइट्स जियो सिंक्रोनस में होती हैं और 3 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी में होती हैं. तो यू शुड रिमेंबर दिस कि इसमें 7 सैटेलाइट टोटल हैं, 4 आपकी जियो सिंक्रोनस में है और 3 जियो स्टेशनरी में है. यू शुड रिमेंबर दिस थिंग बिकॉज UPSC हैज़ ऑलरेडी आस्क्ड अ क्वेश्चन, ठीक है. ये PYQ है आपका.
और यूपीएससी ऑल्सो आज द डिस्टेंस कि इंडिया से कितने डिस्टेंस कवर करता है, तो इट कवर्स इंडिया एंड अप टू 1500 किलोमीटर बियॉन्ड इट्स बाउंड्री. यूपीएससी आई थिंक mentioned in the question 5500, around 5500 kilometer. So that was I think so wrong. You can go and check the question, but the correct distance which it covers is 1500 kilometer beyond its boundary. Navik, this Navik thing. All right. So Navik है क्या? मैंने तो आपको क्वेश्चन बता दिया ये क्वेश्चन कैसे फ्रेम हुआ था एंड हाउ इट कैन बी फ्रेम्ड अगेन. So what is this Navik? Navik is basically an independent standalone navigation satellite developed by ISRO. जिस तरह से यूएस की जीपीएस है, ठीक है, एंड ग्लोनास है रशिया की, एंड यू हैव गैलीलियो फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, तो इस तरीके से इसरो की क्या है, इंडिया की क्या है, नाविक. ऑलराइट, इट इज़ अ नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम. ठीक है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है इस तरीके से. जीपीएस लिखा होगा, यूएस लिखा होगा, ग्लोनास लिखा होगा, चाइना लिखा होगा, नाविक लिखा होगा, इंडिया लिखा होगा. तो आपको पता है इंडिया. ठीक है, तो आपको पता है कि ये गलत है, दिस इज ऑफ रशिया नॉट चाइना. ऑलराइट, एंड जीपीएस इज ऑफ यूएस, यू नो दिस, मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी यूजिंग दिस ऑल्सो, एंड नाविक इज ऑब्वियसली नाउ यू नो इट इज ऑफ इंडिया. ठीक है, इसका एप्लीकेशन क्या है? ऑब्वियसली जो नेविगेशन में एप्लीकेशन होता है, दिस थिंग, पब्लिक व्हीकल ट्रैकिंग इन इंडिया, प्रोवाइडिंग providing emergency warning alerts to fishermen, tracking and providing information related to natural disasters. And just I have already told you, GPS from US, GLONASS from Russia, Galileo from European Union, and this Beidou from China. All right, you should remember this thing. These are actually global navigation satellites and India's is regional. See, India does not cover, India's Navik does not cover whole of the world. It covers just 1500 kilometer beyond India's boundary. You can see this map. Around the SAARC nations, a little more, but around this SAARC nation. ठीक है, you should remember this. So next is this related news. Airport Authority of India successfully conducted flight trials for Gagan based LPV approach procedure. ठीक है, तो ये गगन क्या है? गगन इज जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन. ठीक है, इट इज़ एन इंडियन सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम जॉइंटली डेवलप्ड बाय एआई एंड इसरो. यू शुड रिमेंबर दिस. क्वेश्चन वुड बी फ्रेम्ड, गगन इज एन इनिशिएटिव ऑफ ISRO and DRDO. So the statement would become wrong. It is ISRO and Airport Authority of India. You should remember this thing. ठीक है, for India and neighboring countries in the equatorial region. ठीक है, कि मैंने ये आपको बताया. And it is one among the only 4 space-based augmentation systems available in the world, which also includes US का WAAS, यूरोप का IGNOS and जापान का MSAS. ठीक है, अच्छा, ये गगन से होगा क्या? ये GPS एडेड जियो ऑगमेंटेशन नेविगेशन सिस्टम तो आपने बना लिया, इसका होगा. इससे क्या, वही सिमिलर काम एयर ट्रैफिक कंट्रोल में काम आएगा. मैनेज रोड एंड रेलवेज ट्रांसपोर्ट, हेल्प इन फार्मर्स इन क्रॉप. बेसिकली जो आपका जीपीएस के थ्रू ये जो जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन मतलब हेल्प करेगा एक तरीके से आपकी नेविगेशन पर्पसेस को. ठीक है, तो आपको ये हो गया आपका. एंड नेक्स्ट इज इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन एशिया पैसिफिक रीजन टू रीच सच अ लैंडमार्क इन द फील्ड ऑफ एयर नेविगेशन सर्विस. ठीक है, एशिया पैसिफिक रीजन में इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री जिसने गगन बेस्ड एलपीवी अप्रोच प्रोसीजर फॉलो किया है. ठीक है, नेक्स्ट इज आर्टेमिस. आर्टेमिस हैज़ ऑल्सो बीन वेरी मच इन न्यूज, सो यू शुड नो लिटिल अबाउट दिस मिशन ऑल्सो. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पेस मिशन आप कोई भी पढ़ते हैं, यू शुड नो विच एजेंसी और विच कंट्रीज मिशन इज दैट. ठीक है, जैसे गगन आपको पता है, ऑब्वियस हो जाएगा, यू विल नो दैट इट इज़ अराउंड इसरो और इंडिया. ऑलराइट, बट आर्टेमिस यू माइट बी कन्फ्यूज ऑन यूएस का है या ईयू का है या रशिया का है या जापान का है. कनाडा की अलग स्पेस एजेंसी, फ्रांस की अलग स्पेस एजेंसी है. सो यू शुड नो दीज थिंग्स. ठीक है, जापान की ऑल्सो. सो आर्टेमिस इज ऑफ नासा, यू शुड नो दिस. द मोस्ट बेसिक थिंग टू लर्न अबाउट स्पेस मिशन इज, फर्स्ट थिंग यू शुड नो विच स्पेस एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट मिशन. ठीक है, तो आर्टेमिस क्या है, इसका एम क्या है? इट इज़ टू सेंड लॉन्ग टर्म ह्यूमन प्रेजेंस एट द मून, मतलब ह्यूमन मिशन वापस से. जो अपोलो मिशन यूएस का हुआ करता था उसी का सिस्टर मिशन एक तरीके से है. एंड इट एम्स टू सेंड ह्यूमन बैक टू मून. ठीक है, मतलब वापस से जैसे पहले भेजती थी यूएस एंड अगेन. ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है, फ्रॉम 1969 टू 1972 द नासा अपोलो प्रोग्राम टुक ह्यूमन्स टू द मून.
एंड आर्टेमिस इज द ट्विन सिस्टर ऑफ अपोलो एंड द गॉडेस ऑफ द मून इन ग्रीक माइथोलॉजी। ठीक है, आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए, and nothing more, you should know this at least. Some more major missions of moon to the moon, you should know this. USSR, or which is now Russia, earlier it was USSR, उसका लूना मिशन था। ठीक है, it was the Luna 2 was the first spacecraft to impact the moon surface. USA का लूनर ऑर्बिटर 1, देन अपोलो 11 था जिसने फर्स्ट ह्यूमन को लैंड कराया था मून पे। दिस अपोलो 11 शुड बी रिमेंबर्ड, अपोलो 11। ठीक है, नेक्स्ट इज दिस लूनर रेनेकांस ऑर्बिटर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये ऑर्बिट में बेसिकली रहेगा, लैंड कराने में अपोलो 11। ठीक है, दिस जापान का हितेन, चाइना का चैंग 1 एंड इंडिया का, यू शुड नो दिस, चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2। Chandrayaan 2 aimed to make a soft landing on the moon surface, but it could not succeed. So we are planning a Chandrayaan 3 mission for landing purpose. We have a row orbiter जो कि ऑर्बिट करता है अभी, it has also sent us images and information about moon, but we could not succeed in landing. So we are planning Chandrayaan 3, which would eventually land on moon and give us more information about the moon's majorly south pole, the surface, the mineralogy, the atmosphere, and it would also help in further exploration, मून से आगे जाने का, interplanetary missions लाने का। तो मून एक स्टॉपेज की तरह बन सकता है, that is why we are exploring moon. Moon is also very helpful, like it would act as a fuel pump, मतलब आपका जैसे पेट्रोल पंप्स होते हैं ना, आप लंबी दूरी जाते हैं तो you need fuel. Similarly, moon would provide that fuel, कि मून पे रुकेंगे एंड देन वी वुड गो फर्दर बिकॉज मिलियंस ऑफ डिस्टेंस अवे, तो इस वजह से मून वुड बिकम अ स्टॉपेज पॉइंट। दैट इज़ वाई चंद्रयान 2 इज ऑल्सो बीइंग सेंट, चंद्रयान 3 विल बी सेंट टू एक्सप्लोर दीज पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, आर्टेमिस 1 का मिशन ऑब्जेक्टिव मैंने बताया, फर्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू सेंड ह्यूमन, बाकी आपको स्टडी ऑफ मून, सर्टिफाइंग ओरियंस ऑप्टिकल नेविगेशन सिस्टम, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट ओरियंस हीट, ठीक है, ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, बेसिक हैं। लेकिन बेसिक जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है वो ये है कि व्हाट इज आर्टेमिस 1 एंड हुज मिशन इज दिस। इट इज़ अबाउट सेंडिंग ह्यूमन टू द मून। ठीक है, रेट्रोगेट ऑर्बिट क्या होती है, जैसे जैसे आप आफ्टर गेटिंग क्लोजर टू द मून, द ओरियन स्पेसक्राफ्ट जिस पे जा रहा है, जिसके थ्रू यूज द ग्रेविटेशनल किक इट रिसीव्स टू एंटर द सो कॉल्ड डिस्टेंट रेट्रोगेट ऑर्बिट। Basically, retrograde means it will orbit the moon in the opposite direction to the one which the moon spin. मतलब opposite direction में घूमेगा and it would use the gravity of moon to get closer to it. ठीक है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पे मेंस 2021, हाँ मेंस 2022 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो प्रीलिम्स में भी आ सकता है। अगेन हुज मिशन इज दिस, इट इज़ ऑफ नासा, यू शुड नो दिस थिंग। ठीक है, देखिए लिखा है यहाँ पे, नासा का मिशन है। व्हाट इट इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल स्पेस साइंस टेलीस्कोप। अच्छा, जब भी आप टेलीस्कोप की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए व्हाट काइंड ऑफ टेलीस्कोप इट इज़। ठीक है, ऑलराइट, व्हाट डज इट कैप्चर्स। ठीक है, तो इस टेलीस्कोप ने कैप्चर किया था गैलेक्सी क्लस्टर कॉल्ड मैक्स 0647। तो मैक्स 0647 पे क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज दिस। इट इज़ बेसिकली a galaxy cluster captured by James Webb telescope. ठीक है, ऑलराइट, यू शुड नो दीज थिंग्स। अच्छा, एक और टर्म जो आपको पता होना चाहिए वह है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। जब लाइट एमिट की जाती है बाय सोर्स, इन दिस लाइट एमिटेड बाय सोर्स इज बेंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनदर। जब बहुत दूर से लाइट आ रही होती है तो कोई मैसिव बॉडी अगर बीच में पड़ती है उसकी वजह से लाइट बेंडिंग हो जाती है बेसिकली, और लाइट बेंडिंग से लाइट मैग्नीफाई भी हो जाती है, तो उस मैग्नीफिकेशन ऑफ लाइट को बोलते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ठीक है, लाइट एमिटेड बाय सोर्स इज बेंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनदर मैसिव बॉडी बिटवीन टारगेट गैलेक्सी एंड ऑब्जर्वर, इफेक्टिवली रिजल्टिंग इन मैग्नीफिकेशन ऑफ सिग्नल। ठीक है, जब बहुत दूर गैलेक्सी से लाइट आ रही होती है तो अगर बीच में कोई मैसिव बॉडी पड़ती है तो हम जहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके आने से पहले उसमें टकरा के इट बेंड्स एंड ऑल्सो इट मैग्नीफाइज। ठीक है, सिग्नल मैग्नीफाइड हो जाते हैं। ठीक है, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल लेंसिंग ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, यू शुड नो दिस थिंग। अच्छा, नासा का कोलैबोरेशन था यूरोपियन स्पेस एजेंसी से एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी से टू डेवलप दिस जेम्स वेब टेलीस्कोप। मैंने अभी आपको बताया, इट इज ऑल्सो नोन एज वेब टेलीस्कोप। ठीक है,
अच्छा, मैं बता रहा था कि अगर आप कोई भी टेलीस्कोप पढ़े ना तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ वेव्स इट रिसीव्स और व्हाट काइंड ऑफ वेव्स इट बेसिकली इंटरप्रेट्स। लाइक ये वेव क्या करता है, वेव व्यूज द यूनिवर्स इन इंफ्रारेड, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, नॉट रेडियो, नॉट गामा, नॉट विजिबल, बट ओनली इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है। स्पेशलाइजेशन क्या है उस टेलीस्कोप का, कुछ आपको टेलीस्कोप्स मिलेंगे दैट वुड बी स्पेशलाइज्ड इन रेडियो वेव्स, सम वुड बी इन गामा वेव्स। तो दिस वेब टेलीस्कोप इज स्पेशलाइज्ड ओनली इंफ्रारेड स्पेशलाइज्ड टेलीस्कोप है, ठीक है। It will be the only infrared specialized telescope in space that can see long distances. You should remember this thing. That is its only feature कि मतलब ये खाली है ये, बट इंफ्रारेड इज इम्पॉर्टेंट विद वेब टेलीस्कोप, ठीक है। इसका मिरर 6.5 डायमीटर का है। यू इफ यू रिमेंबर दिस देन गुड, अदरवाइज ऑल्सो इट कैन बी स्किप्ड। लेग्रांजे पॉइंट क्या होते हैं? लेग्रांजे पॉइंट बेसिकली सन के अराउंड होते हैं। एट लेग्रांजे पॉइंट द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ टू लार्ज मासेस प्रिसाइजली इक्वल्स द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर अ स्मॉल सब्जेक्ट टू मूव विद देम। होता क्या है, जब हम यहाँ पे दो लार्ज मासेस के बीच में सेंट्रीपिटल फोर्स, ये बोल रहा है कि प्रिसाइजली इक्वल्स द सेंट्रीपिटल, जो दो मासेस के बीच में जो ग्रेविटी लगती है ना, जो स्पेस में जो हैवी मास होते हैं ना, जैसे सन हो गया, अर्थ हो गया, मून हो गया, तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल पुल होता है ना, तो इन लेग्रांजे पॉइंट्स पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है दैट इक्वल्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल। तो हम उन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके वहाँ पे सैटेलाइट भेजते हैं। जैसे आपको ये जेम्स वेब टेलीस्कोप कहाँ भेजा गया? इट विल बी नॉट इन द ऑर्बिट अराउंड अर्थ बट विल बी ऑर्बिट सन एंड इट इज सेंट टू दी लेग्रांजे पॉइंट 2, ठीक है, L2 पे। हम देखेंगे इंडिया ने एक मिशन भेजा है टू स्टडी दी सन्स कोरोनल डिस्चार्ज, ठीक है, सन के कोरोनल डिस्चार्ज को स्टडी करने के लिए भेजा। उसका नाम क्या है? आदित्य L1। पहले उसका नाम आदित्य था, अब उसका नाम रख दिया गया आदित्य L1। तो उसमें L1 का क्या मतलब है? लेग्रांजे पॉइंट 1, ठीक है। 4 लेग्रांजे पॉइंट लगभग होते हैं, ये कंफर्म करेगा। 4 लेग्रांजे पॉइंट होते हैं, तो एक दो पे ये भेजा गया है, एक पे ये है, ठीक है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट ये है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप इज अराउंड लेग्रांजे पॉइंट 2 एंड आदित्य L1 इज ऑन लेग्रांजे पॉइंट 1, ठीक है। आई एम ओनली टेलिंग यू द इंफॉर्मेशन विच इज एसेंशियल फॉर दिस अपकमिंग एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, हाँ, हाउ दिस जेम्स टेलीस्कोप विल हेल्प इन एडवांसिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स। अर्ली यूनिवर्स की जानकारी देगा हमें, ठीक है। इट वुड ऑल्सो हेल्प अस इन टू डिटेक्ट एक्सो प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स एंड स्मॉल वर्ल्ड्स, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे आगे चल के एक्सो प्लैनेट्स क्या होते हैं, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, एक तो वेब टेलीस्कोप हो गया, आपने पढ़ लिया। यू शुड ऑल्सो नो अबाउट हबल टेलीस्कोप एंड हर्शल टेलीस्कोप। हबल टेलीस्कोप कितने डिस्टेंस पे? 507 किलोमीटर। ये मैंने वेब का आपको बताया, L2 पे है। तो L2 अर्थ से कितनी दूरी पे है? 1.5 किलोमीटर, 1.5 मिलियन किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, ठीक है, लेग्रांजे पॉइंट 2 जो आपका है। एंड दिस सिमिलरली हर्शल जो स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, इट इज़ ऑन द सेकेंड अर्थ लेग्रांजे पॉइंट, सिमिलर, जहाँ पे ये है वहाँ, जहाँ पे वेब है वहीं पे ये भी है, ठीक है, L2 पे। इसका डायमीटर कितना है? इसका छोटा है, 2.4 मीटर का है हबल टेलीस्कोप। वेब का कितना? 6.5 मीटर का, अभी हमने ऊपर देखा। हर्शल का कितना? 3.5 मीटर का। इसका हबल का काम क्या है? टू डिटेक्ट यंग गैलेक्सीज, ठीक है। वाइल वेब का काम क्या है? टू डिटेक्ट न्यू बॉर्न गैलेक्सीज। न्यू बॉर्न का मतलब नहीं है कि कल ही जो बनी हो। न्यू बॉर्न का स्पेस के टर्म्स में टर्म मतलब होता है अराउंड 13.5 बिलियन ईयर्स अगो जो गैलेक्सीज डेवलप इमर्ज हुई हैं, ठीक है, ओरिजिनेट हुई हैं, उनका वो होती है न्यू बॉर्न गैलेक्सीज, ठीक है। एंड क्या ये हबल टेलीस्कोप को सर्विस कर सकते हैं? ऑब्वियसली, क्योंकि 507 किलोमीटर अर्थ से इट कैन बी सर्विस। तो यस, वेब टेलीस्कोप को क्या सर्विस कर सकते हैं? टू सेंड समथिंग 1.5 मिलियन किलोमीटर इज वेरी टफ टास्क, एंड टू सेंड अनदर स्पेसक्राफ्ट टू सर्विस दैट टेलीस्कोप 1.5 मिलियन किलोमीटर एंड फाइंड दैट एट द एग्जैक्ट पोजिशन इज नियरली इम्पॉसिबल फॉर नाउ, ठीक है। टू सर्विस एट दैट डिस्टेंस इज नियरली इम्पॉसिबल, दैट इज वाई इट इज नॉट सर्विसेबल, ठीक है। ये नो, इट इज़ नॉट सर्विसेबल एंड सिमिलरली दिस इज ऑल्सो नॉट सर्विसेबल। अच्छा, कौन सी वेवलेंथ डिटेक्ट करेगा? मैंने बताया अभी आपको, कोई भी टेलीस्कोप आप पढ़ेंगे आपको पता होना चाहिए कौन सी वेवलेंथ डिटेक्ट करेगा वो टेलीस्कोप, ठीक है। तो वेवलेंथ आपकी जो हबल टेलीस्कोप है इट विल डिटेक्ट विजिबल, यूवी एंड पार्ट ऑफ नियर इंफ्रारेड, बट वेब टेलीस्कोप विल डिटेक्ट नियर एंड मिड इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है।
एंड हर्शल का फार इंफ्रारेड एंड सब मिलीमीटर। आपको बस वेब का फिलहाल पता होना चाहिए, नियर एंड मिड इंफ्रारेड, रिमेंबर दिस थिंग, इंफ्रारेड से रिलेटेड है वेब। मैंने आपको रिपीटेडली बताया कि वेब इज एसोसिएटेड विद इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्व किया अभी तक के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने, ठीक है। इसने रिसेंटली इमेजेस ऑफ जुपिटर भेजी थी, ठीक है। तो जुपिटर की भेजी थी, तो जुपिटर के बारे में आपको भी पता होना चाहिए कुछ। जुपिटर के बारे में जो आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट थिंग है कि 11 टाइम है टू ऑफ द साइज ऑफ अर्थ, ठीक है, एंड इट इज 318 टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ, ऑलराइट। इट इज अराउंड 588 to 928 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम जुपिटर टू अर्थ डिपेंडिंग ऑन देयर ऑर्बिट्स। जैसे अभी क्लोज में मान लिया अर्थ यहाँ पे रोटेट करके आ गई, जुपिटर यहाँ पे है, ठीक है, दैट वुड इंक्रीज द डिस्टेंस, क्योंकि दोनों ही सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं सन, तो इस वजह से दे एज देयर ऑर्बिट चेंजेस डिस्टेंस ऑल्सो चेंजेस, दैट इज वाई इट इज़ वेरिएबल। और जुपिटर की प्रॉपर्टीज़ क्या है, इट ऑल्सो हैज़ रिंग्स, ठीक है, लेकिन जुपिटर की रिंग जो होती है बहुत ही फेंट होती हैं, एंड इट इज़ मेड ऑफ डस्ट एंड नॉट आइस, ठीक है। जैसे अनलाइक सैटर्न में आइस होती है, दैट इज वाई इट इज़ विजिबल। जुपिटर की रिंग्स इतनी हल्की होती हैं, दैट इज़ वाई यू कैन नॉट सी इन दिस इमेज और यू कैन नॉट ऑब्जर्व इट क्लियरली, इट इज़ मेड ऑफ डस्ट। मून कितने हैं, ठीक है, जुपिटर हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स, और इसके 4 मून जो इंपॉर्टेंट, वो उनका नाम आपको पता होना चाहिए। इट इज़ लो, यूरोपा, गैनीमीड एंड कैलिस्टो। यू शुड रिमेंबर दीज नेम्स, सम इंपॉर्टेंट मून्स, यू शुड रिमेंबर दीज नेम्स, ठीक है। इसके अलावा देर इज़ अ ग्रेट रेड स्पॉट, इट हैज़ बिग storms like great red spot which has been going for 100 of years. Recently 3 smaller ovals merged from little red spot about half the size of great red spot. अच्छा, great red spot के बारे में अगर आपको पता है तो आपको ये पता होना चाहिए इट इज़ रिलेटेड टू जुपिटर, ठीक है। ये टर्म आपको पता होना चाहिए, इट इज़ एसोसिएटेड विद विच ऑफ द प्लैनेट्स, इट इज़ एसोसिएटेड विद जुपिटर, ठीक है। ऑरोराज जैसे अर्थ पे ऑब्जर्व करते हैं हम ड्यू टू इट्स मैग्नेटिक फील्ड, जुपिटर्स मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो कॉजेज अरोरा एट प्लैनेट्स। अच्छा, अर्थ की जो अरोराज होती हैं उनके नाम क्या है, नॉर्थ पोल पे आपको मिलता है ऑरोरा बोरियोलिस, ठीक है, साउथ पे मिलता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए बेसिक। क्यों फॉर्म होते हैं, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। जब सन फ्लेयर्स आते हैं, इट कोलाइड्स, इट कम्स इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो वहाँ पे चार्ज डिस्चार्ज होता है, दैट लीड्स टू स्पार्कलिंग इन द स्काई, एंड वहाँ पे ग्रीन और ब्लू कलर की स्पार्क्स होते हैं, तो that is very attractive also, it is a tourist, it also attracts tourism also, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ऑरोराज के बारे में थोड़ा सा। एंड इट इज़ अ गैस जाइंट, आपको पता होना चाहिए, इट इज़ 86% ऑफ हाइड्रोजन एंड 14% ऑफ हीलियम। तो ये दो एलिमेंट्स जो हैं ये मैक्सिमम मेजॉरिटी मैक्सिमम है, 86 इज हाइड्रोजन एंड हीलियम इज़ 14%, ये आपको पता होना चाहिए। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑर्बिटिंग आवर सन, आपको ये तो ऑब्वियसली पता है, आपने सोलर सिस्टम की अगर कहीं भी इमेज देखी हो, यू वुड नो दैट। एंड इट्स वॉल्यूम इज़ अबाउट 1.5 टाइम्स ग्रेटर दैन ऑल द प्लैनेट्स कंबाइंड। सारे प्लैनेट्स को कंबाइन कर दें तब भी इट इज़ 1.5 टाइम्स ग्रेटर दैन द अदर प्लैनेट्स, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक्सोमून्स क्या होते हैं, एक्सोमून्स दे आर नेचुरल सैटेलाइट्स दैट रिवॉल्व अराउंड एक्सो प्लैनेट्स, ठीक है। एक्सो प्लैनेट्स क्या होते हैं, जो प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम के बाहर हैं, ठीक है, किसी स्टार को रोटेट कर रहे हैं, स्टार के अराउंड ऑर्बिट में है, ठीक है, ऑर्बिटिंग एनी अदर स्टार अदर देन सन, मतलब हमारे सोलर सिस्टम से बाहर हैं, दैट आर नोन एज एक्सो प्लैनेट। प्लैनेट देखिए लिखा होगा, एनी प्लैनेट बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम मोस्ट ऑर्बिट अदर स्टार्स बट फ्री फ्लोटिंग एक्सो प्लैनेट्स आर कॉल्ड रोग प्लैनेट्स, जो कि किसी को नहीं ऑर्बिट कर रहे हैं, जो फ्री फ्लोटिंग है, ठीक है। ऑर्बिट द गैलेक्टिक सेंटर एंड आर टेदर टू एनी स्टार, ठीक है, वो होते हैं रोग प्लैनेट्स। अदरवाइज किसी स्टार को अगर ऑर्बिट कर रहे हैं, दैट आर नोन एज एक्सो प्लैनेट्स, और उनके मून को बोलते हैं एक्सो मून। एक्सो प्लैनेट के नेचुरल सैटेलाइट्स को बोलते हैं एक्सो मून, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जो क्यूपर बेल्ट क्या होती है, इट इज़ अ डोनट शेप्ड रीजन ऑफ आइसी बॉडीज बियॉन्ड ऑर्बिट ऑफ नेपट्यून, ठीक है, नेपट्यून के बियॉन्ड क्यूपर बेल्ट, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए क्यूपर बेल्ट, एस्ट्रॉयड बेल्ट। एस्ट्रॉयड बेल्ट कहाँ पे पड़ती है, मार्स और जुपिटर के बीच में, और ज़्यादातर जो एस्टेरॉयड्स हमारे सोलर सिस्टम में होते हैं ऑर्बिट वो यहाँ पे हमें मिलते हैं, ठीक है। एस्टेरॉयड बेल्ट ये है मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट, और नेपट्यून के बियॉन्ड है आपकी क्यूपर बेल्ट। ये आपको बस ये पता होना चाहिए क्यूपर बेल्ट किस प्लैनेट से रिलेटेड है या किसके बियॉन्ड है, नेपट्यून के एंड
This is asteroid belt between Mars and Jupiter. This thing you should know. Next term you should know is nebula. What is nebula? Nebula is a giant cloud of dust and gas in space. ठीक है, alright. Some nebula come from gas and dust thrown out of explosion of a dying star such as supernova. ठीक है, other nebula are regions where new stars are beginning to form. ठीक है, बेसिकली डस्ट और क्लाउड का एक जाइंट क्लाउड है, बेसिकली डस्ट और गैस का स्पेस में कैसे बनता है, अगर कोई डाइंग स्टार है उसके एक्सप्लोजन से बहुत सारी डस्ट और गैस निकलती है तो उससे बनता है नेबुला आपका। तो नेबुला की आपको बेसिक डेफिनेशन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता होनी चाहिए। ऑलराइट, अगर नेबुला पे क्वेश्चन आता है तो यू कैन मार्क इट दिस हाउ क्वेश्चन वुड बी फॉर्म, आई विल टेल यू दिस, कम बैक टू दिस। ठीक है, क्वेश्चन होगा मतलब नेबुला के आपको ये 4 स्टेटमेंट दिए होंगे, ये टर्म नहीं दिए होंगे, एक्सो प्लैनेट नहीं दिया होगा। ठीक है, 4 इसी तरीके से, पहला ये स्टेटमेंट दिया होगा, दूसरा ये स्टेटमेंट दिया होगा, तीसरा चौथा, ऐसे 4 स्टेटमेंट दिए होंगे। यू वुड बी आस्क्ड व्हाट इज नेबुला। ठीक है, नेबुला के लिए कौन सा स्टेटमेंट बिलो करेक्ट है। तो अगर आपको पता है इट इज़ अ क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस इन स्पेस, यू वुड मार्क दिस। आपको पता है ये तो एक्सो प्लैनेट का स्टेटमेंट है ना भाई, ये वाला, एनी प्लैनेट बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम। इट इज़ नॉट नेबुला, इट इज़ एक्सो प्लैनेट। ठीक है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है ये। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सम ऑब्जर्वेशन मेड फ्रॉम द इमेजेस रिवील्ड बाय वेब स्मैक्स 0723। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेब्स फर्स्ट डीप फील्ड। ठीक है, ये फेंटेस्ट ऑब्जेक्ट है जो ऑब्जर्व किया था। इसी तरीके से वैप्स 96। ठीक है, ये क्या है, इट इज़ अ हॉट पफी प्लैनेट आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम। वैस्प 96 की बात करें तो आप पता होना चाहिए एक्सो प्लैनेट है। ठीक है, स्टेटमेंट आ सकता है व्हाट इज वैस्प 96 भी, ये क्वेश्चन आ सकता है, इट इज़ एन एक्सो प्लैनेट। देन सदर्न रिंग नेबुला ऑब्जर्व किया, ये आपको मैंने बता ही दिया। स्टीफन्स क्विंटेट, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज लोकेटेड इन कॉन्स्टलेशन पेगासुस। ठीक है, कैरिना नेबुला, नेबुला के बारे में आपको बता दिया। आइंस्टीन रिंग क्या है, इट इज़ विजिबल व्हेन लाइट फ्रॉम अ स्टार और अ गैलेक्सी पासेस अनदर गैलेक्सी। ठीक है, जब लाइट फ्रॉम अ स्टार और गैलेक्सी पासेस अनदर गैलेक्सी तो और मैसिव ऑब्जेक्ट ऑन इट्स वे टुवर्ड्स अर्थ, तो उस केस में जो हमें आइंस्टीन रिंग विजिबल होती है। आइंस्टीन रिंग कब दिखती है, जब लाइट हमारी एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में पास होती है, देन वी कैन ऑब्जर्व आइंस्टीन रिंग फ्रॉम अर्थ। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात करते हैं। मैंने कहा था आपसे इन स्पेस वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे तो वही आ जाता। इन स्पेस क्या है, क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट हैज़ बीन प्रमोटिंग प्राइवेट सेक्टर, हैज़ बीन इनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर टू कम इन टू स्पेस सेक्टर ऑल्सो। ठीक है, टू इन दिस स्पेस फील्ड, so that ISRO can focus on essential research, outer space exploration, can get more resources, can focus on societal exploration which would eventually benefit the society rather than just launching missions which are only for commercial purposes and would not be very much substantial in research or purposes. ठीक है, तो that ISRO is thinking of shifting to private sector and ISRO would focus on outer space exploration research purposes and which would have larger impact on society. So इस वजह से प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया जा रहा है टू पार्टिसिपेट इन स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इन स्पेस क्या है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस। ठीक है, इट इज़ एन ऑटोनोमस नोडल एजेंसी, किस डिपार्टमेंट के अंदर है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, वेरी ऑब्वियस। ठीक है, टू प्रमोट ऑथराइज एंड सुपरवाइज स्पेस एक्टिविटीज़ ऑफ नॉन गवर्नमेंटल प्राइवेट एंटिटीज़ इन इंडिया। ये बेसिकली सुपरविजन करेगी, ठीक है, प्रमोट करेगी, जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रमोशन के लिए, ऑथराइज करेगी जो नॉन गवर्नमेंटल स्पेस एजेंसीज होंगी ना, मतलब प्राइवेट एंटिटीज़ होंगी, उनको बेसिकली एक तरीके से प्रमोट करेगी, ऑथराइज करेंगे, सुपरवाइज करेगी। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इसका मैंडेट क्या है, शेयरिंग स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर with and the premises under the control of ISRO, establishment of temporary facilities, establishment of new space infrastructure and facilities. All right. अच्छा, कुछ जो इनिशिएटिव्स प्राइवेट सेक्टर ने लिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि एज गवर्नमेंट हैज़ बीन प्रमोटिंग दिस थिंग, सो व्हाट आर द इनिशिएटिव्स टेकन रिगार्डिंग दिस, यू शुड नो दिस ऑल्सो। सो फर्स्ट इज हैदराबाद ध्रुव स्पेस, ठीक है, एंड बेंगलुरु डिजंतारा, ठीक है, वर ऑथराइज बाई इन स्पेस फॉर लॉन्च ऑफ पेलोड्स ऑन बोर्ड PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। हमने ये पोएम पढ़ा था ना, इट इज़ एसोसिएटेड विद दिस ओनली। और PSLV ये भी हमने पढ़ा था, 55th लॉन्च मिशन था ना सक्सेसफुल, अभी हमने ऊपर पढ़ा था।
सो सी इट इज़ कमिंग बैक। तो आपको पता होना चाहिए ध्रुव स्पेस के बारे में, डीजी अंतारा के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट इज मिशन प्रारंभ क्या है? इट इन्वॉल्व लॉन्च ऑफ विक्रम एस, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इट इज़ इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट, दिस इज अ बिग डील, ठीक है। फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट बाई हैदराबाद बेस्ड स्काईरूट एरोस्पेस, ठीक है। विक्रम एस, डोंट गेट कंफ्यूज्ड बाय दिस, इट इज़ अ रोवर ऑफ Chandrayaan 2 or something like that. There was also Vikram rover, but you should remember this Vikram S. It is a privately built rocket, ठीक है। और किसके अंदर लॉन्च हुआ? मिशन प्रारंभ के अंदर। इट इज़ अ प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड ऑल्सो अनवील्ड एट श्री हरिकोटा, ज़्यादातर लॉन्च यहीं से होते हैं, श्री हरिकोटा से ना। एंड यू शुड नो दिस प्राइवेट कौन सा था? इट वॉज डिजाइंड बाई अग्निकुल, इट इज़ ऑल्सो अ स्टार्टअप through support of ISRO and INSpace. So these two names are important, was Mission Prarambh and this Agnikul, designed by Agnikul, that is launch pad. Mission Prarambh was the first privately built rocket in India, ठीक है। हैदराबाद बेस्ड स्काईरूट एरोस्पेस ने ये लॉन्च किया था। ऑलराइट, नेक्स्ट इज NSIL, व्हाट वी वर डिस्कसिंग अर्लियर। NSIL क्या है? इट इज़ कंट्रीज फर्स्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द स्पेस सेक्टर, पहली PSU है अंडरटेकिंग इन द स्पेस सेक्टर, एंड ऑल्सो द कॉमर्शियल आर्म ऑफ ISRO, ठीक है, जो काम करेगी प्रोडक्शन में एंड मार्केटिंग ऑफ स्पेस बेस्ड सर्विसेज। इट इज़ ऑल्सो एम्पावर्ड टू ओन द ऑपरेशनल लॉन्च ऑफ व्हीकल्स एंड स्पेस असेट्स ऑफ ISRO, तो कुछ असेट्स को भी ओन करेगी ISRO के, एंड इट इज़ द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द स्पेस सेक्टर, एज यू नो। इट इज़ ऑल्सो द कॉमर्शियल, मतलब जो कॉमर्शियल फंक्शन होंगे ISRO के, दैट इट वुड ऑल्सो अंडरटेक, ठीक है। इसी तरीके से इंडियन स्पेस एसोसिएशन क्या है? ये 2021 में लॉन्च हुई थी, ठीक है। देयर वाज लॉट ऑफ न्यूज़ अराउंड ISPA, दिस इंडियन स्पेस एसोसिएशन। तो ये एक नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री बॉडी है जो कि काम करेगी टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक स्पेस इंडस्ट्री इन इंडिया, ठीक है। नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री बॉडी है, यू शुड नो दिस। PSU कौन सी है? NSIL। नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री बॉडी कौन सी है? दिस ISPA, ISPA। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड वॉज ऑल्सो अ मार्केटिंग आर्म ऑफ ISRO। इसी तरीके से स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट सीड, ये ठीक है, दिस यू शुड नो। इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव अर्ली एज इंकरेजमेंट प्रोग्राम टू स्टार्टअप्स, जैसे कि ये मिशन प्रारंभ हुआ, या हैदराबाद का ध्रुव स्पेस है, ठीक है, या दिस इज डिजाइंड बाय अग्निकुल स्टार्टअप है। तो इन सब के प्रमोशन के लिए वी हैव दिस थिंग, दिस प्रोग्राम, सीड प्रोग्राम, ठीक है। तो यू शुड नो दिस NSIL, PSU, ISPA is an non-profit industry body, and also you should know this, the NSIL हो गया आपके, इससे पहले आपने पढ़ा था दिस थिंग इन स्पेस। व्हाट इज दिस इन स्पेस? इट इज़ अ ऑटोनोमस नोडल एजेंसी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर ये आता है। ISRO के बारे में आपको पता होना चाहिए, इन स्पेस के बारे में पता होना चाहिए, NSIL के बारे में आपको पता होना चाहिए, ISPA के बारे में पता होना चाहिए। दीज आर इंपॉर्टेंट बॉडीज एक्चुअली, ठीक है। NSIL, ठीक है, यू शुड नो अबाउट दीज थिंग। नेक्स्ट द टॉपिक इज स्पेस सस्टेनेबिलिटी। ऑलराइट, सो व्हाट इज स्पेस सस्टेनेबिलिटी? तो जैसे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह पढ़ते हैं, तो उसी तरीके से आपको समझ में आ जाना चाहिए, इट इज समथिंग रिलेटेड टू सस्टेनेबिलिटी अराउंड स्पेस। तो स्पेस सस्टेनेबिलिटी रिफर्स टू इंश्योरिंग दैट ऑल ह्यूमैनिटी कैन कंटिन्यू टू यूज आउटर स्पेस फॉर पीसफुल पर्पजेज एंड सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स नाउ एंड इन द लॉन्ग टर्म। मतलब जो आउटर स्पेस है उसका सारी ह्यूमैनिटी अभी सही से इस्तेमाल करे एंड टू कंटिन्यू फॉर द फ्यूचर में भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके। तो किसी तरीके से मोनोपोली ना हो, ठीक है। कुछ इस तरीके जैसे केस्लर सिंड्रोम एक हम पढ़ेंगे अभी आगे, वो चीज़ें ना हो, एंड इट डज नॉट बिकम ओवर क्राउडेड, या कुछ प्राइवेट सेक्टर की उस पर मोनोपोली ना हो जाए, या कोई गवर्नमेंट ही उस पर अपना इट बिकम्स ओनली एक्सेसिबल टू फ्यू गवर्नमेंट्स, द पावरफुल नेशंस, ऐसा ना हो। इस वजह से स्पेस सस्टेनेबिलिटी का टॉपिक डिस्कस किया गया था वर्ल्ड स्पेस फोरम में, ठीक है। यू शुड रिमेंबर दिस नेम जस्ट। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म including governmental institutions, international organization, etc. to promote discussion on the role of space technology in global sustainable development, ठीक है। It discussed around सस्टेनेबिलिटी इन स्पेस, ठीक है। अच्छा, जो 5 एग्रीमेंट्स हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं टू प्रमोट दिस स्पेस सस्टेनेबिलिटी, वो आपको पता होनी चाहिए। व्हाट आर दिस थिंग्स? आउटर स्पेस ट्रीटी है, ये बेसिकली पीसफुल यूज़ ऑफ स्पेस को प्रमोट करता है। देन देयर इज़ रेस्क्यू एग्रीमेंट, कि अगर कुछ
एस्ट्रोनॉट जो जाते हैं उनको कुछ किसी तरीके की दिक्कत होती है तो ऑल पॉसिबल जो हेल्प होगी वो प्रोवाइड की जाएगी थ्रू ऑल दीज एजेंसीज एंड नेशंस एसोसिएटेड विद स्पेस प्रोग्राम्स। इसके बाद लायबिलिटी कन्वेंशन है, ये कहता है कि इफ़ देयर इज़ एनी डैमेज ड्यू टू एनी स्पेस मिशन तो कंप्लीट लायबिलिटी रहेगी लॉन्चिंग स्टेट की। देन देयर इज रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन जो कि रूल्स देता है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ मतलब स्पेस ऑब्जेक्ट में कुछ भेजने के लिए देयर शुड बी फ्री एंड ओपन एक्सेस ऑफ दीज रजिस्टर्स। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज मून एग्रीमेंट। मून एग्रीमेंट बात करता है कि मून जो है आपका एक नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट इज़ अ कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, तो ये 5 एग्रीमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। हाउएवर इट हैव बिकम आउटडेटेड एज द स्पेस एक्सप्लोरेशंस, जिस स्पेस पे वो चल रही हैं, दीज इंटरनेशनल ट्रीटीज हैव नॉट बीन एबल टू कीप पेस विद द करंट स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स। ठीक है, अराउंड द नेशन। प्राइवेट सेक्टर का भी इंक्लूजन हो गया, स्पेस एक्स लगातार मिशन भेजता है, ठीक है, जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन, वर्जिन गैलेक्टिक, बट these international treaties does not have any clause for private entities. And also recently there have been multiple developments like anti-satellite these missiles also, so there is nothing about that also. So these treaties need refinement. That would be a different discussion part for mains, but abhi ke liye you should know these names and what are they supposed to achieve. ठीक है अच्छा, स्पेस सस्टेनेबिलिटी को थ्रेट क्या है, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो क्या ऑर्बिटल क्राउडिंग हो रही है, स्पेस डेब्रिस बढ़ रहा है। ठीक है, जो मैंने केस्लर सिंड्रोम की बात की। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, आप मल्टीपल सैटेलाइट्स भेजे रहे हैं, 1 भेजी 2 भेजी 3 भेजी, इट इज़ बिकम ओवर क्राउडेड। और फिर क्या होगा, एक मान लीजिए सैटेलाइट डिसफंक्शन हो गई। ठीक है, डिसफंक्शन हो गई, उसने अपनी ऑर्बिट खोक दी और दूसरी सैटेलाइट यहाँ पे अपनी ऑर्बिट में थी, दिस इज द ऑर्बिट ऑफ दैट सैटेलाइट, दिस इज द ऑर्बिट ऑफ दिस सैटेलाइट, and it would crash into this satellite. This was working, all right, and now it has also become unfunctional, it has also lost orbit, it would crash into another satellite. 3 अब 3 डेब्रिस हो गए। डेब्रिस, स्पेस डेब्रिस मतलब कूड़ा समझ लीजिए, स्पेस में जो कूड़ा है। ठीक है, क्रूड वे में समझ लीजिए ऐसे, फिलहाल के लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इससे आपका। ठीक है, एंड देन अब 3 हो गए, 3 एंड इसके भी टुकड़े होंगे, इट वुड अगेन कोलाइड विद अदर सैटेलाइट। तो इस तरीके से ऐसा ना हो जाए कि मल्टीपल कोलिजन्स होते रहें एक के बाद एक के बाद एक, दैट वुड ट्रिगर केस्लर, उसको बोलते हैं केस्लर सिंड्रोम, जो कि एक चेन रिएक्शन ट्रिगर कर देगा ड्यू टू ओवर क्राउडिंग ऑफ द ऑर्बिट्स इन द आउटर स्पेस। ठीक है, तो इसको लेकर भी इश्यूज़ हैं, इस वजह से स्पेस सस्टेनेबिलिटी का टॉपिक डिस्कस किया था वर्ल्ड स्पेस फोरम में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, केस्लर सिंड्रोम पे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो दैट आई हैव एक्सप्लेन यू व्हाट इज केस्लर सिंड्रोम। इट इज़ लाइक अ चेन रिएक्शन when there is physical crowding of orbits which can lead to chain reaction that would trigger this Kessler syndrome. ठीक है, इसके बाद मिलिटराइजेशन और वेपनाइजेशन की वजह से भी हो सकता है। व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस एसैट वेपन्स, द एंटी सैटेलाइट डिस्ट्रक्टिव एंटी सैटेलाइट वेपन्स जो होते हैं, जो स्पेस अर्थ से आप सैटेलाइट टारगेट कर सकते हैं थ्रू दीज एसैट वेपन्स। तो आप टारगेट करेंगे, डेब्रिस क्रिएट होगा, दैट वुड अगेन ट्रिगर चेन रिएक्शन। ठीक है, सो दैट सी हेयर यहाँ पे दे रखा है इन्होंने केस्लर सिंड्रोम क्या होता है। अ सिनेरियो वेयर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन लो अर्थ ऑर्बिट इज हाई इनफ दैट कोलिजन्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स कैन क्रिएट अ कैस्केडिंग इफेक्ट वेयर ईच कोलिजन जनरेट्स डेब्रिस इंक्रीजिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्दर कोलिजन्स। वही चीज़ बोल रहा है कि लो अर्थ ऑर्बिट में अगर डेंसिटी बढ़ती जा रही है तो आपस में कोलाइड करेंगे और कैस्केडिंग इफेक्ट होगा, फिर एक के बाद एक ट्रिगर होती चली जाएगी चेन रिएक्शन एंड इट वुड बिकम डेट्रीमेंटल फॉर द स्पेस प्रोग्राम्स ऑफ ऑल ओवर द, सबके स्पेस प्रोग्राम्स इम्पैक्ट हो सकते हैं, नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, स्पेस के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए, दैट यू शुड नो व्हाट आर द ग्लोबल इनिशिएटिव्स टेकन। यूएन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स है। ठीक है, इट सपोर्ट्स गवर्नमेंट्स इन ग्लोबल स्पेस एक्टिविटीज़। कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट है। ठीक है, देयर इज गाइडलाइंस यूएन कमेटी ने लॉन्च की थी इन 2019 अंडर दिस ओनली, यूएन कमेटी ऑन द पीसफुल यूज़ ऑफ आउटर स्पेस। इसी के अंदर वो 5 ट्रीटीज़ आती हैं जो मैंने आपको बताई थी, जो मून एग्रीमेंट है, आउटर स्पेस ट्रीटी है, दैट 5 comes under this UN Committee on Peaceful Use of Outer Space. You should know this thing. Then there is Space Sustainability Rating. All right, it is by World Economic Forum. ठीक है, Space Sustainability Rating.
देन देयर इज एसैट टेस्ट बैन रेजोल्यूशन पास हुआ था, नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन है, जिसमें इंडिया ने एब्सटेन किया था, इंडिया ने वोट नहीं किया था. इट वॉज पास बाय यूएन जनरल असेंबली कॉलिंग फॉर बैन ऑन काइनेटिक एसैट टेस्ट, क्योंकि इंडिया ने भी शायद 2019 में एसैट टेस्ट किया था अपना एंटी सैटेलाइट वेपन. इस वजह से इंडिया इंडिया एब्सटेन्ड फ्रॉम दिस रेजोल्यूशन. इट वॉज अ नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन. ठीक है, यू शुड नो दिस. देन देर इज प्रोजेक्ट नेत्र, ये इसरो की है बेसिकली. ये क्या करेगी? इट वुड प्रोवाइड फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन द स्टेटस ऑफ डेब्रिस. बेसिकली इसरो की जो ये प्रोजेक्ट नेत्र है, ये हमें स्पेस में डेब्रिस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर. देन वी कुड डेविएट आर सैटेलाइट्स फ्रॉम द डेब्रिस. अगर आपको लग रहा है थ्रू दिस इंफॉर्मेशन, इफ इसरो गेट्स to know that some debris or some asteroids is coming to in the way of the satellite of India, so what they can do is control, they can shift their move their satellite, or they can tackle that debris also. ठीक है. Then there is SpaceX also. It is to provide in orbit servicing. ISRO is developing a space docking experiments. अगर स्पेस में कुछ हो जाता है इंडियन सैटेलाइट्स को, तो थ्रू दिस SpaceX मिशन इन ऑर्बिट सर्विसिंग करेगी. जैसे हम लेग्रांजे पॉइंट, हम वेब टेलीस्कोप में बात करते हैं ना सर्विस करने का, मतलब इफ देयर सम प्रॉब्लम अराइजेज, हाउ टू रेक्टिफाई दैट. वो जो आपका वेब टेलीस्कोप है उसमें तो नहीं कर सकते हैं, बट नियर लो अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स दैट कुड बी सर्विस. तो SpaceX जो मिशन है दैट इज अराउंड सर्विसिंग द सैटेलाइट्स ऑफ इंडिया इन ऑर्बिट सर्विसिंग. ठीक है, ऑर्बिट में है, दैट कुड बी सर्विस थ्रू दिस मिशन. इसरो इज डेवलपिंग अ स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, मतलब कि वी वुड डॉक अनदर स्पेसक्राफ्ट एंड वी कुड सर्विस द एग्जिस्टिंग सैटेलाइट. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. इसके बाद स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस क्या है? इट रिफर्स टू नॉलेज ऑफ स्पेस एनवायरनमेंट, असेसमेंट ऑफ एनी थ्रेट टू स्पेस एक्टिविटीज़. ठीक है, तो इट इज़ वेरी मच डिड्यूसिबल बाय इट्स नेम इटसेल्फ. ठीक है, कि स्पेस एनवायरनमेंट की नॉलेज और क्या स्पेस एक्टिविटीज़ को थ्रेट है, तो दैट थिंग इज नोन एज स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस. देन देर इज space tourism, next topic, very trendy topic it is actually, because many private sector agencies have tried to send tourists. ठीक है, in space. ठीक है, तो इसरो इज डेवलपिंग कैपेबिलिटीज टुवर्ड्स स्पेस टूरिज्म. अच्छा, ये आपको बात रखनी चाहिए, याद रखनी चाहिए, स्पेस टूरिज्म इज जनरली फॉर नाउ लिमिटेड टू लो अर्थ ऑर्बिट ओनली. ठीक है, यू शुड नो दिस. Space tourism is a segment of space travel that allows people to travel to space for recreational, leisure और business purposes. जैसे जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन, ठीक है, या रिचर्ड ब्रांसन की दिस वर्जिन गैलेक्टिक, और एलन मस्क की SpaceX. ये कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने स्पेस टूरिज्म में एंटर किया. ठीक है, यू शुड नो दिस थिंग ऑल्सो. So you should know this thing, Kármán line. Kármán line is where atmospheric lift no longer supports a flying object and the object would need to reach orbital velocity or risk falling back to earth. ठीक है, जहाँ पे जो कार्बन लाइन एटमॉस्फेरिक जो लिफ्ट होती है दैट इज नॉट, इट इज़ नॉट सपोर्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक लिफ्ट, और वहाँ पे उस जो आपका जो स्पेस क्राफ्ट है दैट वुड नीड टू रीच द ऑर्बिटल वेलोसिटी जो अर्थ की है, अदरवाइज इट वुड फॉल बैक ऑन अर्थ. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. तो जब हम स्पेस टूरिज्म की बात कर रहे हैं, देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ स्पेस टूरिज्म, सब ऑर्बिटल टूरिज्म, ऑर्बिटल टूरिज्म. सब ऑर्बिटल है, इट इज़ अराउंड 100 किलोमीटर्स. ठीक है, जो ब्लू ओरिजिन वाली थी, हाँ, उस ब्लू ओरिजिन दैट वाज रिलेटेड टू दिस थिंग. देन इट इज़ ऑर्बिटल टूरिज्म, इट इज़ अराउंड 400 किलोमीटर, अबव 400 किलोमीटर. ठीक है, इसमें क्या है, फ्यू मिनट्स के लिए पैसेंजर स्पेस में जाता है एंड इट कम्स बैक. कम स्पीड चाहिए होती है एंड इट कैन फ्लाई अप टू अ सर्टेन हाइट एंड देन कम बैक डाउन. ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्योंकि 400 किलोमीटर तक जा रहे हैं, देन दे वुड स्पेंड डेज और इवन मोर देन अ वीक इन स्पेस एंड स्पेसक्राफ्ट मस्ट अचीव ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्योंकि दैट हैज़ पास द कार्बन लाइन जो मैंने आपको बताया. ठीक है, दिस थिंग. देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कम्स इज ब्लैक होल्स. ठीक है, व्हाट इज अ ब्लैक होल? फर्स्ट learn this, what is a black hole? Let's come to this page. What is a black hole? ठीक है, this ब्लैक होल बेसिकली कोई स्पेस में ऐसी जगह पे जहाँ पे ग्रेविटी इतनी ज़्यादा पुल करती है कि वहाँ से लाइट भी बाहर नहीं आ सकती. ठीक है, इट इज़ अ प्लेस इन स्पेस वेयर ग्रेविटी पुल सो मच दैट इवन लाइट कैन नॉट गेट आउट. ठीक है, दैट मच ऑफ ग्रेविटेशनल पुल इज देयर, दैट इज नोन एज
दैट स्पेस इज नोन एज ब्लैक होल, ठीक है। ये कब बनता है? दिस कैन हैपन व्हेन अ स्टार इज डाइंग, ठीक है, यू शुड रिमेंबर दिस थिंग। नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ ब्लैक होल्स कैन बी इन्फर्ड बाय डिटेक्टिंग देयर इफेक्ट ऑन मैटर्स नियर बाय देम। इसका मतलब है कि पता कैसे चलेगा यहाँ पे ब्लैक होल है, कि वहाँ से तो लाइट पास ही नहीं हो रही, तो यू शुड नो, यू वुड गेट टू नो, और द साइंटिस्ट वुड गेट टू नो देयर इज अ ब्लैक होल, वहाँ के आसपास के मैटर को ऑब्जर्व करके, ठीक है, उससे इन्फरेंस निकाल के पता चलता है कि देयर इज अ ब्लैक होल देयर, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है ब्लैक होल को पढ़ने की, स्टडी करने की, पता चलता है जो फंडामेंटल थ्योरीज हमारी फिजिक्स की, दैट गेट्स ऑब्जेक्टिफाइड बाय दिस, एंड ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है, इसलिए हम ब्लैक होल के बारे में पढ़ते हैं। और समथिंग और रिलेटेड टू ब्लैक होल वो भी हम टर्म्स देख लेते हैं। सिंगुलैरिटी, ये क्या है? इट इज द सेंटर ऑफ ब्लैक होल वेयर मैटर हैज कोलैप्स्ड इन अ रीजन ऑफ इनफाइनाइट डेंसिटी। ये ब्लैक होल का एग्जैक्ट सेंटर है जहाँ पे इतनी इनफाइनाइट डेंसिटी है, बेसिकली अंडरस्टैंडिंग हाउ मच डेंसिटी, इनफाइनाइट डेंसिटी सिंगुलैरिटी में। देन देयर इज इवेंट हॉरिजन, ठीक है, इट इज द रेडियस अराउंड सिंगुलैरिटी वेयर मैटर एंड एनर्जी कैन नॉट एस्केप द ब्लैक होल्स ग्रेविटी, द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। मतलब इवेंट हॉरिजन वो पॉइंट है जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ गया, दैट इट वुड बी सक्ड इनटू ब्लैक होल, ठीक है, वहाँ से अब रिटर्न का कोई चांस नहीं बचा, दैट इज नोन एज इवेंट हॉरिजन। देन देयर इज एक्रेशन डिस्क, इट इज अ सुपरहीटेड गैस एंड डस्ट वर्ल्ड्स अराउंड ब्लैक होल एट इमेंस स्पीड प्रोड्यूसिंग एक्स रेज, ठीक है। ये ब्लैक होल के अराउंड डस्ट और गैस का वर्ल्ड है, ठीक है, जहाँ से एक्सरेज रिलीज होती हैं, विच वी ऑल्सो गेट टू नो अबाउट ब्लैक होल ड्यू टू दीज एक्सरेज ऑल्सो, ठीक है। देन देर इज Rolotovitz jet, when stars are absorbed by black holes, jets of particles and radiation are blasted out near light speed, ठीक है। जब कोई स्टार या कुछ और ऑब्जेक्ट को मतलब ब्लैक होल सक इन कर लेते हैं ना, तो इट रिलीजेस अ जेट ऑफ पार्टिकल्स एंड रेडिएशंस, ब्लास्ट की तरह निकलता बाहर, सो दैट इज नोन एज Rolotovitz jet, ठीक है। तो ये हमने देख लिया ब्लैक होल का बेसिक फंडा। टाइप्स ऑफ ब्लैक होल होते हैं, टाइनी ब्लैक होल, स्टेलर ब्लैक होल, सुपर मैसिव ब्लैक होल। इट इज रिलेटेड अराउंड इट्स मास, ठीक है, यू कैन गो थ्रू दिस, 20 टाइम्स मोर है, ये 1 मिलियन टाइम्स सन का मास के, ठीक है। आई हैव टोल्ड यू द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक होल्स, दीज 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वेयर क्वेश्चन वुड बी फ्रेम्ड इफ यूपीएससी आस्क्स अराउंड, ठीक है। Then there is ergosphere. What is this ergosphere? It is a black, if the black hole is rotating, then as it spins, its mass causes the space time around the black hole to rotate as well. तो मतलब जब ब्लैक होल रोटेट कर रहा है तो वहाँ उसके अराउंड का जो स्पेस टाइम है ना वो भी रोटेट करेगा, एंड दैट रीजन इटसेल्फ इज कॉल्ड एर्गोस्फीयर, ठीक है। Schwarzschild radius क्या है? It is, this is the event horizon's radius. It is the radius at which escape velocity is equal to the speed of light. यहाँ पे इवेंट हॉरिजन में बता दी ना। अब यहाँ से बचने के लिए आपको स्पेस ऑफ लाइट की स्पीड मैच करनी, स्पीड ऑफ लाइट मैच करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उस रेडियस को बोलते हैं, इवेंट हॉरिजन की रेडियस को बोलते हैं दिस Schwarzschild radius, द जर्मन नेम, ठीक है। तो आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग। नाउ कम बैक टू द न्यूज़। व्हाट वाज द न्यूज़? पहली फोटोग्राफ एक्चुअली द सेगिटेरियस ए की जो है, जो कि एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। हमने 3 टाइप देखे थे, उसमें से जो सुपर मैसिव मिलियन टाइम्स ऑफ सन, तो वो ब्लैक होल की आपको फर्स्ट फोटोग्राफ जो है देखने को मिली थी रिसेंटली थ्रू दिस इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप, ठीक है। यू शुड नो दिस अबाउट इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप, व्हाट आई वाज टेलिंग अबाउट द टेलीस्कोप, यू शुड ऑल्सो नो अबाउट दिस इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप, ऑलराइट। देन देर इज what you should know about what is galaxy. Galaxy is a huge collection of gas, dust, billion of stars and their solar systems all held together by gravity, ठीक है। हमारा सोलर सिस्टम बस एक पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी का, ठीक है। इसमें और स्टार्स हैं और एक्सो प्लैनेट्स, जो हमने एक्सो प्लैनेट्स की बात की थी, तो दैट आर रिवॉल्विंग अराउंड अदर स्टार्स ऑल्सो। सो गैलेक्सी इज अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ गैस, डस्ट एंड बिलियन ऑफ स्टार्स. Of those billion of stars, sun is one star, all right, and of that sun, earth is one of the planets, ठीक है, जो उसको अराउंड ऑर्बिट कर रही है, ठीक है, इट इज ऑर्बिटिंग दिस सन, ठीक है. गैलेक्सी कैन बी स्पाइरल, एलिप्टिक और इरेगुलर शेप, यू शुड नो दिस, ठीक है. 2020 का नोबेल प्राइज फिजिक्स में इसी से रिलेटेड मिला था. हाफ ऑफ द प्राइज वाज गिवन टू रॉजर पेनरोज फॉर द डिस्कवरी ऑफ ब्लैक होल फॉर्मेशन, द रोबस्ट प्रोडक्शन ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. तो 2020 का क्योंकि नोबेल प्राइज पे मिला था, सो यू शुड नो अ लिटिल अबाउट जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन ने प्रपोज की थी. यू शुड नो, यू आर मस्ट बी नोइंग, तुम्हें पता ही होगा पहले से. यू शुड नो दिस दैट इट इज अ थ्योरी ऑफ ग्रेविटी हुज बेसिक आइडिया इज दैट इंस्टेड ऑफ बीइंग एन gravity instead of being an invisible force
विच अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट, ग्रेविटी इज अ कर्विंग और वार्पिंग ऑफ स्पेस। मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग ग्रेविटी की होती है कि दो मैसिव ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को जो अट्रैक्ट करते हैं, जो उसमें जो इनविजिबल फोर्स एक्ट कर रही होती है वो ग्रेविटी होती है। बट आइंस्टीन सेड दैट ग्रेविटी इज अ कर्विंग और वार्पिंग ऑफ स्पेस। ठीक है, जब बहुत मैसिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना तो दैट वार्प द स्पेस अराउंड इट, दैट वी वर टॉकिंग अबाउट ब्लैक होल ना, कि जो उसके अराउंड की जो स्पेस एंड टाइम है दैट ऑल्सो गेट्स रोटेटेड एंड इट गेट्स वार्प। तो जब मैसिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं दैट वार्प्स और कर्व्स दी स्पेस अराउंड इट, दैट इज नोन एज ग्रेविटी। ये इन्होंने कहा था, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी ये कहती है। ठीक है, द फर्स्ट मेजर टेस्ट ऑफ जनरल रिलेटिविटी, एस्ट्रोनॉमर्स इन 1919 measured the deflection of light from distant stars as the starlight passed by our sun। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रूव करता है कि ग्रेविटी डज इन फैक्ट डिस्टॉर्ट और कर्व स्पेस। तो ग्रेविटी बेसिक आपको याद रखने की बात इसमें यह है कि जो ग्रेविटी है दैट डिस्टॉर्ट्स और कर्व स्पेस। ठीक है, स्पेस को डिस्टॉर्ट करती है। यू शुड नो दिस थिंग। ऑलराइट, 2016 में इस थ्योरी का कंफर्मेशन भी हुआ था थ्रू ऑफ डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। ठीक है, ये 2016 में कंफर्मेशन हुआ था। तो 2016 में शायद इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा था यूपीएससी ने। नेक्स्ट वी हैव कवर्ड दिस ब्लैक होल थिंग। टाइडल डिस्ट्रप्शन इवेंट भी देख लेते हैं क्या है। इन 2018 साइंटिस्ट ऑब्जर्व ब्लैक होल रिपिंग अ स्टार इनटू श्रेड्स बिकॉज इट गॉट टू क्लोज। ब्लैक होल मैंने बताया ना आपको, जैसे वो इतनी क्लोज इट सक्स इनटू स्टार्स एंड अदर मैसिव ऑब्जेक्ट्स, तो वही चीज़ था। दैट इज नोन एज टाइडल डिस्ट्रप्शन। उस इवेंट को बोला गया था टाइडल डिस्ट्रप्शन इवेंट और TDE। जब ब्लैक होल वायलेंटली रिप्स अपार्ट स्टार्स दैट गेट टू क्लोज। ठीक है, तो ये आपको बस पता होना चाहिए व्हाट वाज दिस टाइडल डिस्ट्रप्शन इवेंट। नेक्स्ट इज अबाउट दिस सुपर मैसिव ब्लैक होल वी हैव डन अर्लियर। वी वुड गो नेक्स्ट। अच्छा, ग्रेविटेशनल वेव प्रोड्यूस कब होती है, क्रिएट कब होती है? जब कोई स्टार एक्सप्लोड करता है, ठीक है, सुपरनोवा बनता है, देन अदरवाइज टू बिग स्टार्स ऑर्बिट ईच अदर। जब दो बिग स्टार ऑर्बिट करेंगे, हमने बताया ना मैसिव बॉडीज होंगी, दैट वुड क्रिएट रिपल और कर्व द स्पेस, तो तब ग्रेविटेशनल वेव्स क्रिएट होंगी। ऑब्जेक्ट्स मूव एट अ वेरी हाई स्पीड, देन ग्रेविटेशनल वेव्स वुड बी क्रिएटेड। एंड नेक्स्ट इज टू ब्लैक होल्स ऑर्बिट ईच अदर। दो ब्लैक होल की इतनी ज़्यादा डेंसिटी हुई, एंड इफ टू ब्लैक होल्स आर ऑर्बिटिंग ईच अदर and also they merge, then also gravitational waves would be created. You should know this. All right, next topic हमारा जो है that is of dark matter. What is this dark matter thing? What is this dark matter thing? देखो, यूनिवर्स जो हमारा है इट इज क्रिएटेड ऑफ थ्री में बेसिक थिंग्स। एक तो आपका जो विजिबल यूनिवर्स है जो आप देख सकते हैं, जैसे अर्थ हो गया, सन हो गया, अदर स्टार्स हो गया, that makes only 5%. You would be surprised to know visible universe is only 5%. Dark energy is around 70% and dark matter is around 25%. ठीक है, तो ये डार्क विजिबल यूनिवर्स तो आपको पता चल गया क्या है, इट्स सन, अर्थ, अदर स्टार्स। ठीक है, जो कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने हैं। ठीक है, बट ये तो सिर्फ 5% बना रहा भाई। यू शुड नो अबाउट दिस डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी वो चीज़ है, इट इज़ अ नेम गिवन टू मिस्टीरियस फोर्स दैट्स कॉजिंग द रेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ आवर यूनिवर्स टू एक्सेलरेट ओवर टाइम। डार्क एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी है जो हमारे स्पेस को कॉज कर रहा है एक्सपैंड करने का। आपको पता है ना कि यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, इट इज़ नॉट श्रिंकिंग रादर देन इट इज़ एक्सपैंडिंग सिंस इट्स क्रिएशन। जब से यूनिवर्स क्रिएट हुआ इट इज़ एक्सपैंडिंग। So what is responsible? What is the cause of the expansion of universe? It is the dark energy, which consists of 75% or 70% of the universe. You should know this. And what is dark matter? तो इन सब के अलावा unlike normal matter जो बचा हुआ है that consists of dark matter. Dark matter does not interact with electromagnetic force. This means it does not absorb, reflect or emit light. तो हम क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो विजिबल लाइट है बेसिकली दैट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ही आती है हमारे, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। ऑलराइट, तो आपको जो डार्क मैटर जो आपका है दैट डज नॉट एब्जॉर्ब और डज नॉट इंटरैक्ट विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो इस वजह से इसको डिटेक्ट करना बहुत हार्ड हो जाता है। ठीक है, डार्क मैटर को। तो डार्क मैटर की स्टडी हम करते हैं, क्यों करना है हमें, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डार्क मैटर स्टडी? इट इज़ हम फॉर अनएक्सप्लेन मोशन ऑफ स्टार्स विद इन गैलेक्सीज। जो गैलेक्सी के अंदर स्टार्स का मोशन है ना, उसको पढ़ने के लिए वी स्टडी दिस डार्क मैटर। अंडरस्टैंडिंग द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ यूनिवर्स
also earth but moreover universe is a broader term, universe, to determine if the universe is open or flat, जैसे कि expand हो रहा है, close हो रहा है, dark energy की हम बात करते हैं, it is the cause for expanding or moving forward of the universe. तो इसी वजह से हम dark matter की study करते हैं, ठीक है. You should know this thing about dark matter and dark energy. Do not go into much detail. Just know this, that a test run of LZ detector in US has shown it to be the most sensitive dark matter detector. तो dark matter detect किया था इस LZ detector ने, जो कि US में located है, ठीक है. ये इसके बारे में we will not go into much detail because we should know about the basic concept. What is dark matter, what is dark energy, what is visible matter, ठीक है, कितना परसेंटेज फॉर्म करता है, ठीक है, ये आपको पता है तो बस दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू सॉल्व अ 2 मार्कर MCQ in the UPSC prelims examination. I have told you about dark energy, what it is, ठीक है, I have told you about this, ठीक है. एक्सपेंशन को एक्सप्लेन करता है ये, ठीक है. पहले हाइपोथेसाइज किया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, अगेन द जीनियस, ठीक है, यू शुड नो दिस. अच्छा, रिसेंटली अर्थ ने अपना शॉर्टेस्ट डे रिकॉर्ड किया था, ठीक है. इट वॉज अराउंड 1.5 मिलियन मिली सेकेंड्स लेस देन द स्टैंडर्ड 24 आवर्स. 29 जुलाई 2022 को अर्थ ने अपना शॉर्टेस्ट डे रिकॉर्ड किया था, ठीक है. तो ये क्यों किया था वो आपको बस पता होना चाहिए. इसके मल्टीपल रीजन्स हो सकते हैं. एक रीज़न हो सकता है कि जो चेंज हो रहे हैं इनर और आउटर लेयर ऑफ कोर में, उसकी वजह से, ओशंस की वजह से, टाइड की वजह से, या इवन क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से भी ये हो सकता है. इसके अलावा चैंडलर वॉबल एक कॉन्सेप्ट है, वो आपको पता होना चाहिए. दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चेंज इन अर्थ्स डे टाइम, ठीक है. तो ये क्या है, इट इज द चैंडलर वॉबल क्या है, बस आपको ये पता होना चाहिए. इट इज द चेंज इन स्पिन ऑफ अर्थ एज इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. जैसे कि जो स्पिन ऑफ अर्थ है उसमें चेंज जब वो अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, दैट इज नोन एज चैंडलर वॉबल, ठीक है. इसके पॉसिबल कॉजेज क्या हो सकते हैं, क्यों ये जो चेंज हो रहा है उसके स्पिन रोटेशन में. ये हो सकते हैं कि जो है बॉटम ऑफ ओशन पे जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं उसकी वजह से भी हो सकता है. इसके अलावा जो ओशन की टेम्परेचर और सैलिनिटी चेंज हो रही है, दैट इज ऑफ ऑल्सो मल्टीपल ह्यूमन रीजंस, नेचुरल रीजंस, सोलर फ्लेयर्स, मल्टीपल रीजंस की वजह से जो हो रहा है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबल कॉजेज ऑफ चैंडलर वॉबल. यू शुड नो दिस थिंग ऑल्सो. ऑलराइट, चैंडलर वॉबल के बारे में हो गया. नेक्स्ट विल गो इनटू सम स्पेस ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलेटेड डेवलपमेंट्स. अच्छा, नासा का ये डार्ट मिशन है, दैट इज टू रीडायरेक्ट को एस्टेरॉयड अगर आ रहा है अर्थ की तरफ तो उसको रीडायरेक्ट कर दे. तो रिसेंटली ये डिडोमॉस जो था ना बाइनरियस, उसको रीडायरेक्ट किया था. दैट इज व्हाई इट वाज न्यूज़. नासा देखिए लिखा है, नासा क्रैश्ड डार्ट मिशन ऑन बाइनरी एस्टेरॉयड सिस्टम डिडीमॉस एंड मूनलेट टू टेस्ट अ काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्नोलॉजी. बेसिकली ये काइनेटिक इम्पैक्ट देता है, मारता है, उसको हिट करता है जाके ऑन द एस्टेरॉयड टू चेंज इट्स ऑर्बिट, जिससे कि वो अर्थ या और कोई जो सैटेलाइट्स हैं स्पेस में उनके इम्पैक्ट में आए हैं वो एस्टेरॉयड, एंड इट डज नॉट क्रिएट्स एनी डिस्ट्रक्शन, ठीक है. तो डार्ट मिशन इज रिलेटेड टू डील विद एस्टेरॉयड्स इन आउटर स्पेस, ठीक है, टू चेंज देयर पाथ थ्रू काइनेटिक इम्पैक्ट, ठीक है. ये आपको पता नहीं, दिस इज द कीवर्ड काइनेटिक इम्पैक्ट. जैसे कुछ आपको मिशंस होते हैं ना इस तरीके की एस्टेरॉयड मूवमेंट के, वो आपको उठा के आउटर स्पेस में ले जाएंगे, कैप्चर करेंगे, it would leave into outer space. कुछ होंगे would bring that asteroid back into Earth's atmosphere and it would burn down that asteroid or that debris. But what is this DART mission? It would hit the asteroid and it would create a kinetic impact जिससे कि उसकी orbit change हो जाए, ठीक है, incoming asteroid की. Next is SOFIA mission. What is the SOFIA mission? It is also NASA's mission, ठीक है. NASA is planning to shut down SOFIA telescope that found water on moon. ठीक है, तो इस सोफिया मिशन ने बेसिकली मून पे वाटर डिटेक्ट किया था. और 2019 में सोफिया ऑल्सो डिस्कवर्ड हीलियम हाइड्राइड, द फर्स्ट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इन यूनिवर्स ऑलमोस्ट 14 बिलियन ईयर्स. तो हीलियम हाइड्राइड को डिटेक्ट किया था जो कि पहला मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ था यूनिवर्स की क्रिएशन के बाद, ठीक. ठीक है, इसरो के कुछ हम रिसेंट मिशन देख लेते हैं. इट इज फर्स्ट इज द हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम. इट इज़ यूज्ड फॉर द लॉन्च व्हीकल्स, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है. हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडीन इसमें फ्यूल की तरह यूज़ होता है, और लिक्विड ऑक्सीजन और लॉक्स इज यूज एज एन ऑक्सीडाइजर, ठीक है, इस मोटर सिस्टम में. दिस HTPB इज यूज एज फ्यूल एंड लिक्विड ऑक्सीजन इज यूज एज ऑक्सीडाइजर, ठीक है. आपको ये पूछ सकता है कि
HTPB इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजर और एज अ फ्यूल, मतलब इंटरचेंज कर देगा, ठीक है। ट्रू फॉल्स नहीं पूछ, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि HTPB इज यूज्ड एज अ फ्यूल, ठीक है, एंड लिक्विड ऑक्सीजन LOX इज यूज्ड एन ऑक्सीडाइजर, सो यू शुड नो दिस थिंग ओनली, ऑलराइट। And it is unlike solid solid or liquid liquid combination, a hybrid motor uses solid fuel and a liquid oxidizer, ये आपको पता, ये यहाँ पे देखिए लिखा है ना लिक्विड ऑक्सीजन। तो दिस बेनिफिट क्या है इसके, इट इज मोर एफिशिएंट, ग्रीनर एज इट इज यूजिंग लिक्विड ऑक्सीजन एज ऑक्सीडाइजर, तो इट इज ग्रीनर, ऑलराइट, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड, और सेफर टू हैंडल। तीन है, पहली बात तो एफिशिएंसी ज़्यादा है, ग्रीनर है, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो सेफर टू हैंडल, ऑलराइट। नेक्स्ट इज सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ HS-200 बूस्टर फॉर गगनयान प्रोग्राम। अच्छा, हम गगनयान प्रोग्राम अभी डिटेल में देखेंगे, देन वी वुड कवर दिस ऑल्सो। HS-200 क्या है, ठीक है, इट इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट ऑपरेशनल बूस्टर यूजिंग सॉलिड प्रोपेलेंट्स। चलिए मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा क्या है। बेसिकली गगनयान मिशन के थ्रू ना इंडिया स्पेस में अपने मतलब ह्यूमन स्पेस फ्लाइट भेजना चाहता है, तो दैट इज अंडर गगनयान मिशन, ठीक है। इट इज़ अ ह्यूमन रेटेड वर्जन ऑफ S-200 रॉकेट। तो ये HS-200 जो है ये ह्यूमन रेटेड रॉकेट है थ्रू लॉन्च व्हीकल GSLV Mark 3, ठीक है, LMV-3। गगनयान आपको ह्यूमन स्पेस फ्लाइट भेजना चाहता है इन द लो अर्थ ऑर्बिट, ये मैंने पहले भी बताया था, ठीक है, एन ऑर्बिट ऑफ अराउंड 2000 किलोमीटर और लेस, ठीक है। इससे पहले US भेज चुका है, रशिया भेज चुका है, चाइना हैव मैनेज्ड टू सेंड मैन्ड मिशंस टू आउटर स्पेस, ठीक है। इंडिया वुड बिकम फोर्थ, ठीक है, you should remember this thing through Gaganyaan mission, all right। Next is this inflatable aerodynamic decelerator. It is also successfully tested by ISRO and it this technology to land mission on Venus and Mars, ठीक है, ये मार्स और वीनस पे लैंड कराने की टेक्नोलॉजी के लिए टेस्ट किया गया था। इट इज़ यूज फॉर एरोडायनेमिकली डिसेलरेटिंग एन ऑब्जेक्ट डिसेंडिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर। चंद्रयान 2 क्रैश हुआ, सॉफ्ट लैंडिंग हम कराना चाह रहे थे बट वी कुड नॉट मैनेज दैट, सो दिस टेक्नोलॉजी वुड ऑल्सो एड इन दैट पर्पज ऑल्सो, ठीक है। एरोडायनेमिकली डिसेलरेट करेंगे हम ऑब्जेक्ट को जब वो उसके एटमॉस्फेयर में पहुंचेगा, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ केवलार फैब्रिक, यू शुड रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। क्यों बना है केवलार फैब्रिक से, बिकॉज इट प्रोवाइड्स हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, टफनेस, थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज रोहिणी साउंडिंग रॉकेट्स। व्हाट आर दीज साउंडिंग रॉकेट्स? साउंडिंग रॉकेट्स बेसिकली स्पेस भेजे जाते, मतलब इट इज सेंट टू द अपर एटमॉस्फेयर टू स्टडी द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एंड ऑल्सो फॉर स्पेस रिसर्च के लिए भेजा जाता। तो इंडिया ने अपना पहला जो भेजा था साउंडिंग रॉकेट, दैट वाज सेंट इन 1963 फ्रॉम थुम्बा। अगर आपने रिसेंटली रॉकेट बॉयज़ देखा होगा तो ये फर्स्ट सीजन में के एंड में जो भेजते हैं ना, दैट इज़ अ साउंडिंग रॉकेट, जो भेजते हैं ना रॉकेट, दैट इज़ अ साउंडिंग रॉकेट, ठीक है, ऑलराइट। ISRO launched Rohini 200 RS-200 sounding rocket. Sounding rockets are 1 or 2 stage solid propellant rockets for probing the upper atmospheric regions and for space research। ये मैंने आपको बताया पहले भी, ठीक है। तो ISRO ने पहला कब भेजा था, ये was launched in 1963 from थुम्बा। आप स्पेस बॉयज़ देख, रॉकेट बॉयज़ है ना सीरीज़ का नाम, दैट when it was also known, ISRO was known as इंडियन स्पेस प्रोग्राम, that was not known, तब इसरो नहीं कहलाता, it was beginning, basically it was beginning of the Indian space program that marked a very big landmark, or it was actually the first step। तो RISAT-2 सैटेलाइट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं हम, ये देखते हैं, सीधे पॉइंट पे आते हैं। इसरो की जो RISAT-2 सैटेलाइट है ये हैज़ मेड एन अनकंट्रोल री एंट्री इन टू द अर्थ एटमॉस्फेयर। RISAT-2 थी, ये तो न्यूज़ हो गई। RISAT-2 थी क्या, इट वॉज अ रेडार इमेजिंग सैटेलाइट, ठीक है, और इसका वेट था अराउंड 300 kg। लॉन्च की गई थी 2009 में, और इसमें सिंथेटिक अपर्चर रेडार थे जो कि अर्थ की पिक्चर लेते थे डे एंड नाइट, एंड इट ऑल्सो हेल्प इन राउंड द क्लॉक बॉर्डर सर्विलांस अलॉन्ग विथ चेकिंग इन्फिल्ट्रेशन की बॉर्डर के थ्रू कोई अंदर ना आए, दैट ऑल्सो इट चेक, ठीक है। RISAT-2 सैटेलाइट। आदित्य L1 मिशन के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि स्टडी करने के लिए सन के कोरोना डिस्चार्ज को, ठीक है, सोलर एमिशंस को, सोलर विंड्स को। इट इज़ ऑन दी आदित्य, मैंने ये भी आपको पॉइंट बता दिया था कि इट इज़ रीनेम्ड एज आदित्य L1 ऑन लग्रांजे पॉइंट। व्हाट इज़ लग्रांजे पॉइंट, ये भी आपको बता दिया गया। इसके अलावा सोलर मिशन कुछ और देख लिए। यूरोपियन स्पेस का जो सोलर मिशन है दैट इज़ नोन एज सोलर ऑर्बिटर, यू शुड नो दिस। एंड नासा का जो सोलर मिशन है दैट इज़ नोन एज नासाज पार्कर सोलर प्रोब।
और L2 पे कौन सा टेलीस्कोप है? इट इज़ वेब टेलीस्कोप, यू शुड नो दिस, वेब टेलीस्कोप, जेम्स वेब टेलीस्कोप, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क, स्पिन। स्पिन, इट इज़ एन इसरो साइंड एन MOU विद सोशल अल्फा टू लॉन्च स्पिन। स्पिन क्या है? इट इज़ इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर इनोवेशन, क्यूरेशन, वेंचर डेवलपमेंट फॉर द स्पेस एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम, ठीक है। You should know this thing. Basically, it is a dedicated platform for innovation, curation, and venture development. All right. Let us go through some more important news on space. What is this solar eclipse? Solar eclipse कब होता है? जब मून बीच में आ जाता है अर्थ और सन के, दिस थिंग, ठीक है, दिस सोलर एक्लिप्स, दिस डायग्राम, ठीक है। ऑलराइट, this is solar eclipse, and when earth is in between sun and moon, it is known as lunar eclipse, ठीक है। this thing you should know this thing. types of solar eclipse होता है, एक total solar eclipse होता है। total solar eclipse में क्या होता है? मून completely ब्लॉक कर देता है सन को, ठीक है, that is known as total solar eclipse. इस ये जो रेज आ रही है, मतलब ये जो है ना रीजन, इसको बोलते हैं उम्ब्रा, ठीक है, दिस वन, एंड दिस इज नोन एज पेनम्ब्रा, ठीक है। यू कैन प्रोनाउंस इट डिफरेंटली, बट आपको समझ होनी चाहिए किस रीजन को बोलते हैं दिस उम्ब्रा और अम्ब्रा, ठीक है। देन इट इज़ पार्शियल सोलर एक्लिप्स कब होता है? पार्शियल सोलर एक्लिप्स तब होता है जब एग्जैक्टली बीच में नहीं होते हैं, ठीक है, व्हेन दे आर नॉट एग्जैक्टली बीच, ये लेटर में इट इज़ ब्लॉकिंग सन्स लाइट बट इट इज़ नॉट ब्लॉकिंग कंप्लीटली, देन इट इज़ पार्शियल सोलर एक्लिप्स, ठीक है। एन्यूलर सोलर एक्लिप्स में क्या होता है? एक डिस्क टाइप का बनाता है, बीच में होता है, एंड यू कैन सी अ डिस्क, लाइक यहाँ पे ऐसे आपको डिस्क दिखती है बस, सन इज विजिबल लाइक दिस, डिस्क लाइक, लुक्स लाइक अ रिंग अराउंड द मून, सॉरी अ रिंग लाइक अराउंड द मून, ठीक है। मून के अराउंड आपको एक रिंग दिखेगी सन की, दैट इज नोन एज एन्यूलर। एन्यूलर पे क्वेश्चन आएगा तो यू विल हैव टू फाइंड द कीवर्ड दिस, रिंग लाइक मून, रिंग अराउंड द मून, ठीक है, रिंग अराउंड द मून, तो आपको पता चल जाएगा ये एन्यूलर सोलर एक्लिप्स के बारे में बात कर रहा है। जब कंप्लीट कवर कर लेगा तो टोटल सोलर एक्लिप्स, जब थोड़ा सा क्रिसेंट शेप का देगा देन इट इज़ पार्शियल सोलर एक्लिप्स, वरना हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स, ठीक है। ब्लड मून क्या होता है? जब आपका अर्थ सन रेज को ब्लॉक करता है और अर्थ का एटमॉस्फेयर बेसिकली जो होता है वो ब्लू लाइट को तो डिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है, बट रेड लाइट रीचेस द सन, एंड व्हेन रेड लाइट passes through and falls onto the sun, falls onto the moon, मून appears to be red. तो जब लाल मून दिखता है दैट इज नोन एज ब्लड मून, खून की तरह, ठीक है, दैट इज नोन एज ब्लड मून, क्योंकि रेड लाइट इज बीइंग फॉलिंग ऑन टू द मून। तो इस जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म क्या होते हैं? तो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म बेसिकली होते हैं डिस्टर्बेंस इन अर्थ मैग्नेटोस्फेयर विच इज द एरिया अराउंड द प्लैनेट कंट्रोल्ड बाय इट्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। व्हेन कोरोनल मास इजेक्शंस कोलाइड विद अर्थ इट कॉजेज जियोमैग्नेट, जो अर्थ होती है ना उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ऐसे इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। मैं ये रफ स्केच बना लूँ तो यहाँ पे जब कोरोनल डिस्चार्ज आता है ना तो यहाँ पे कुछ मैग्नेटोस्फेयर जो इसका है इसमें डिस्टर्बेंसेस होती हैं, दैट इज नोन एज जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म, ठीक है। इम्पैक्ट क्या करता है? ये जो रेडियो ब्रॉडकास्ट उसको, GPS को, सैटेलाइट्स को, कम्युनिकेशन सिस्टम को, नेविगेशन को, ठीक है, उनको इम्पैक्ट करता है जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। कोरोनल होल्स क्या होते हैं? कोरोनल होल्स बेसिकली आपके होते हैं सन के जो आउटर सरफेस में होल्स हमें दिखते हैं, यहाँ पे सन के आउटर सरफेस में होते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में होते हैं, ये बेसिकली होते हैं लिटिल क्या बोलते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर लोअर होता है, दिस यू शुड नो, और ये डार्कर अपीयर होते हैं आसपास की सराउंडिंग के कंपेरेटिवली, दैट दीज कोरोनल होल्स अपीयर डायरेक्टर, और इन्हीं से कोरोनल डिस्चार्ज होता है, ठीक है, यहाँ पर से, और हर 11 साइकिल में ऑब्जर्व किए जाते हैं। इज नॉट अ यूनिक फॉर्मूला अपियरिंग थ्रू आउट द सन्स अप्रॉक्सीमेटली 11 ईयर सोलर साइकिल, यू शुड नो दिस थिंग, 11 ईयर सोलर साइकिल में होते हैं, ठीक है। These coronal holes can cause solar storm on Earth as they release a complex stream of solar winds, जो मैंने भी आपको बताया कि इनमें से कॉम्प्लेक्स स्ट्रीम ऑफ सोलर विंड्स निकलती हैं, ऑलराइट। इसके बाद सन स्पॉट क्या होते हैं? ये सन के सरफेस पे बेसिकली होते हैं, स्पॉट्स होते हैं जो कि डार्कर अपीयर होते हैं, कूलर होते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे रिलेटिवली कूल एज दे फॉर्म एट एरियाज वेयर मैग्नेटिक फील्ड्स आर पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग, ठीक है। जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि आपको बहुत सारे टॉपिक कवर कराने हैं। तो कोरोनल आपको पता होना चाहिए, कोरोनल होल्स अपर एटमॉस्फेयर में सन के होते हैं, एंड सन स्पॉट्स आर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, दिस यू शुड नो।
फास्ट रेडियो बर्स्ट क्या होते हैं? You should know this thing also. Astronomers have reported a FRB whose characteristics are different from almost all other FRBs. FRB होते क्या? These are bright burst of radio waves, ठीक है, whose duration lie in the millisecond scale. Alright. रेडियो बर्स्ट, ब्राइट बर्स्ट ऑफ रेडियो वेव्स होते हैं जिनकी ड्यूरेशन कुछ मिली सेकेंड में होती है और इनकी अपीयरेंस बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होती है, ठीक है। ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इसी जैसे फास्ट रेडियो बर्स्ट होते हैं उसी तरीके से गामा रे बर्स्ट होते हैं, ठीक है। गामा रे बर्स्ट बेसिकली हाई एनर्जी रेडिएशंस होती हैं जो कि एनर्जेटिक कॉस्मिक एक्सप्लोरेशन से निकलती। गिव मी अ सेकंड। हाँ ठीक है, तो हम पढ़ते हैं वापस से। गामा रे बर्स्ट होती हैं, दीज आर फ्लैशेस ऑफ हाई एनर्जी रेडिएशन अराइजिंग फ्रॉम एनर्जेटिक कॉस्मिक एक्सप्लोजन्स एंड दीज आर द मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोजन्स यूनिवर्स हैज सीन सिंस द बिग बैंग, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। दीज आर द मोस्ट, अगर कंपेरेटिव दोनों का क्वेश्चन आता है आपस में, कंपेरेटिवली क्वेश्चन आता है, ठीक है, मतलब कंपेयर करने को नहीं आएगा, दीज टू स्टेटमेंट्स आते हैं। दीज आर मोर पावरफुल गामा रे बर्स्ट, ठीक है, दीज आर मोर पावरफुल। Then this topic Betelgeuse, it is a bright red super giant on the shoulder of Orion, ठीक है, this thing, alright। it is a red giant is a dying star in the final stage of stellar evolution, ये ठीक है। सुपरनोवा जो स्टेलर नेबुला होता है, दैट बिकम्स एन एवरेज स्टार दैट लीड्स टू रेड जाइंट, प्लानिटरी नेबुला, देन वाइट डॉर्फ। तो ये डाइंग स्टेज बेसिकली लाइफ साइकिल ऑफ स्टार रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यू शुड नो दिस थिंग ओनली। देन देयर इज अ वाइट डॉर्फ, इट इज ऑल्सो द लास्ट स्टेज ऑफ द स्टार, यू कैन सी हेयर एज यू कैन सी हेयर, ठीक है, दिस थिंग वाइट डॉर्फ। लाइफ साइकिल ऑफ स्टार है बस, ये आपको, यू शुड रिमेंबर दिस। एंड इट इज stars that have burned up all the hydrogen that once they used as a nuclear fuel। जब स्टार की सारी हाइड्रोजन खत्म हो जाती तो वो वाइट डॉर्फ बन जाता है, ठीक है। इट इज़ बेसिकली कॉस्मिक डस्ट इज मेड ऑफ वेरियस एलिमेंट्स सच एज कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन एंड अदर एटम्स हेवियर देन हाइड्रोजन एंड हेलियम, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सैटर्न की जो रिंग्स हैं उनके बारे में। सैटर्न का मून के जैसे हमने जुपिटर के मून के बारे में बात की थी, लो, गैनीमीड, ठीक है। इस तरीके से आपको सैटर्न के मून के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट इज दिस, यू शुड नो अबाउट दिस, क्रिसालिस, ठीक है। सैटर्न इज द सिक्स्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जैसे हमने जुपिटर के बारे में दिखा था, इट इज द लार्जेस्ट, सैटर्न इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट, ठीक है। सैटर्न की एक्सियल टिल्ट कितनी है? 26.73 डिग्री, यू शुड नो दिस थिंग ऑल्सो। एंड सैटर्न हैज 7 रिंग्स कंपोज्ड ऑफ वाटर आइस पार्टिकल्स रेंजिंग फ्रॉम माइक्रोन्स टू 10 ऑफ मीटर्स इन साइज, ठीक है। हमने देखा था जुपिटर की रिंग होती है लेकिन बहुत ही फेंट होती क्योंकि वो डस्ट होती है, वहाँ पे आइस नहीं होती। लेकिन सैटर्न में क्योंकि आइस होती, दैट इज विजिबल। नेपट्यून में भी इसी तरीके से रिंग्स होती हैं एंड ऑल्सो यूरेनस। यू शुड नो हाउ मेनी प्लैनेट्स हैव रिंग्स, यू शुड नो दिस थिंग, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, तो यू शुड नो दिस, जुपिटर, सैटर्न, नेपट्यून एंड यूरेनस। सैटर्न की इजीली विजिबल होती हैं एज दीज आर कंपोज्ड ऑफ वाटर आइस पार्टिकल्स। देन प्लांट्स इन मून सॉइल रिसेंटली। रेगोलिथ क्या है? रेगोलिथ आपको पता होना चाहिए। रेगोलिथ बेसिकली इट इज दी व्हाट डू वी से, मून की सॉइल कह लो, ऐसे कह लो, इट इज, हाँ ये देखिए लिखा है, दिस लूनर सॉइल ऑल्सो कॉल्ड रेगोलिथ। इसमें साइंटिस्ट हैव फॉर द फर्स्ट टाइम सक्सेसफुली ग्रोन प्लांट्स इन मून सॉइल। तो रेगोलिथ आपको पता होना चाहिए क्या है, ठीक है। उसमें प्लांट उगाने की कोशिश की साइंटिस्ट ने, ठीक है, दैट यू शुड नो। नेक्स्ट इज न्यू एस्टेरॉयड, ये 2022 AP7, यू शुड नो दिस नेम, इट इज एन एस्टेरॉयड। कभी कभार यूपीएससी डायरेक्ट टर्मिनोलॉजी वाले क्वेश्चन पूछता है, देन इट कुड आस्क व्हाट इज दिस 2022 AP7। देन एक्सोप्लैनेट्स मैंने आपको पहले बता दिया क्या होते हैं एक्सोप्लैनेट्स। एग्जाम्पल भी मैंने वास्प 76b का पहले दे दिया था। यू नाउ नो कि जो स्टार्स आर अदर देन सन, जो किसी और स्टार को ऑर्बिट कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज एक्सोप्लैनेट। बर्नार्डिनेली बर्नस्टीन कॉमेट क्या है? इट इज़, ये बेसिकली कॉमेट है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इट इज़ बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड इन द ऊर्ट क्लाउड, जो कि एक बहुत ही फार अवे डिस्टेंस है फ्रॉम सोलर सिस्टम। एंड ऊर्ट क्लाउड इज प्रेडिक्टेड टू बी दी ओरिजिन ऑफ
मोस्ट ऑफ द कॉमेट्स, ठीक है। ऊट क्लाउड के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड दिस इज बर्नार्डिनेली बर्नस्टीन इज अ कॉमेट, यू शुड नो दिस नेम। डार्क स्काई रिजर्व रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहाँ से डेवलप किया, हनले में, ये कहाँ है, लद्दाख में, ठीक है। दिस थिंग Changthang Wildlife Sanctuary, you should know this name also because UPSC asks around wildlife sanctuaries, national parks. So as this reserve, Dark Sky Reserve, is situated in Changthang as a part of Changthang's Wildlife Sanctuary, so you should know this. And it is one of the world's highest located sites for optical, infrared and gamma ray, ठीक है, telescopes, ठीक है, you should know this thing. इसके अलावा इंडिया की कुछ और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो आपको पता होनी चाहिए कहाँ पे है, इट इज़ एट अटॉप माउंट सरस्वती नीलम खुल प्लेन इन हनले वैली, ये तो आपको हो गई। एंड अदर आर हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप, हाई एनर्जी गामा रे टेलीस्कोप, मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप एंड ग्रोथ, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी की अलग अलग टेलीस्कोप, प्रोमिनेंट टेलीस्कोप्स कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। यू शुड नो दिस थिंग ऑल्सो। डार्क स्काई रिजर्व है क्या, बेसिकली इट इज अ प्लेस वेयर, मतलब ट्रैक्ट ऑफ लैंड है जहाँ पे आपको मिनिमल आर्टिफिशियल लाइट इंटरफेरेंस मिलेगा, देन यू कुड ऑब्जर्व फार अवे जो आउटर स्पेस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं या जो बॉडीज़ हैं, यू जो स्टार्स हैं, यू कुड ईजिली स्टडी दोज बिकॉज ऑफ लेस और मिनिमल आर्टिफिशियल लाइट इंटरफेरेंस, इस वजह से इट इज़ सिचुएटेड इन लद्दाख रीजन, ठीक है। देन देर इज संपूर्णानंद ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स SOT, इट इज़ लोकेटेड एट अराइज। अराइज क्या है, इट इज़ आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, उत्तराखंड में लोकेटेड है ये। एंड इट इज़ एन ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, स्पेशलाइजेशन करता है इसमें ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी में एंड एस्ट्रोफिजिक्स में, ऑल्सो इन एटमॉस्फेरिक साइंसेज, ठीक है। दिस अराइज इंस्टीट्यूट जो है आपका, ठीक है। जो सॉट का जो मेजर इंस्ट्रूमेंट है दैट इज कैसे, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस to remember, you can just skip this. You should know what is this. It is a telescope. It is located in Uttarakhand, where मनोरा पीक, नैनीताल, उत्तराखंड, ठीक है। 50 साल हो गए उसको ऑपरेशन के, ठीक है। यू शुड नो दिस थिंग। देन सारस 3 टेलीस्कोप है, यू शुड नो अबाउट दिस। इट इज़ अ रेडियो, सारस 3 हैज़ हेल्प डिटरमाइन प्रॉपर्टीज ऑफ द अर्लीस्ट रेडियो लिमिनस गैलेक्सीज, जो कि लगभग 200 मिलियन ईयर्स पहले फॉर्म हुई हैं, उनको डिटेक्ट करने में हेल्प किया। एंड सारस 3 इज अ प्रिसीजन रेडियो टेलीस्कोप। व्हाट आई हैव बीन टेलिंग फ्रॉम स्टार्टिंग, जब भी टेलीस्कोप पढ़ेंगे तो आपको पता रहना चाहिए व्हाट काइंड ऑफ वेवलेंथ दैट डज इट डिटेक्ट्स। सारस 3 इज अ रेडियो टेलीस्कोप। इट इज ऑल्सो एविडेंट फ्रॉम इट्स नेम, इट इज रिटन शेप्ड एंटीना मेजरमेंट ऑफ द बैकग्राउंड रेडियो स्पेक्ट्रम टेलीस्कोप। बट UPSC वुड आस्क व्हाट इज सारस 3 टेलीस्कोप के अराउंड पूछेगा, सो यू वुड नॉट गेट दिस रेडियो नेम, यू शुड नो दिस, इट इज अ रेडियो टेलीस्कोप, ठीक है। You should know this, and it is designed and built by Raman Research Institute, ठीक है। It is an autonomous which is under Department of Science and Technology, you should know this। और ये कहाँ पे, ये डंडीगनाहल्ली लेक कर्नाटका में है। अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो यू पार्डन मी प्लीज़, आपको ये पता होना चाहिए ये इस जगह पर है, ऑन द बैक वाटर्स ऑफ दिस रिवर, एंड इट इज़ लोकेटेड इन कर्नाटका, यू शुड नो दिस थिंग। नेक्स्ट इज लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। ये इंडिया का फर्स्ट और एशिया का लार्जेस्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, जो कि देवस्थल ऑब्जर्वेटरी, जो अराइज हमने देखा था ना अभी ऊपर नैनीताल में, वहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। एंड इट ऑब्जर्व्स एस्टेरॉयड, सुपरनोवा एंड स्पेस डेब्रिस और अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। इट इज़ अ लिक्विड मिरर, तो मतलब जो बेसिक इसका जो क्या बोलते हैं प्राइमरी मिरर जो है दैट इज लिक्विड, ठीक है। यू शुड रिमेंबर दिस थिंग। And because it is India's first and Asia's largest liquid mirror telescope, so it becomes important and you should know this. स्पेस ब्रिक क्या है, रिसेंटली इसरो ने जो है डेवलप किए हैं स्पेस ब्रिक्स, जो कि मेड ऑफ कॉम्प्लेक्स शेप्स फ्रॉम मार्शियन सॉइल, ठीक है, यूजिंग द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया एंड यूरिया। तो यू शुड नो दिस, इसरो हैज़ डेवलप्ड इट, डोंट गेट कंफ्यूज, नासा हैज़ डेवलप्ड और सम अदर स्पेस एजेंसी और सम प्राइवेट एजेंसी, इसरो हैज़ डेवलप्ड यूजिंग किसकी, मार्शियन सॉइल को इस्तेमाल करके, ठीक है। नेक्स्ट इज टियांगोंग। व्हाट इज दिस, इट इज़ अ स्पेस स्टेशन जो कि चाइना का है। इट इज़ अ मैंड स्पेस, जैसे हम इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी ना, उसी बेसिस पे चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च किया फाइनल मॉड्यूल ऑफ टियांगोंग, अ स्पेस स्टेशन फॉर चाइनीज मैंड स्पेस एजेंसी। मतलब चाइना अपना एक स्पेस एजेंसी क्रिएट करना चाह रहा है, डेवलप करना चाह रहा है, दैट इज नोन एज टियांगोंग, यू शुड नो दिस, ठीक है। मैंने आपको ISS के बारे में पहले बताया, ठीक है। It would be much smaller and lighter than ISS. It is very obvious because ISS में multiple countries हैं,
US, European Union, also there's Russian help, then there is Canadian, so all participate together. ठीक है, तो हमारा स्पेस का ये प्रोग्राम, स्पेस वाला हमारा ये मॉड्यूल हो गया. विल गो ऑन टू अपडेटेड पार्ट वेयर विल कवर अदर स्पेस रिलेटेड न्यूज़ जल्दी से. ठीक है, देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचते हैं. एंड विल ट्राई टू फिनिश इट अप अर्ली. वी हैव ऑलरेडी टेकन 1.5 hours. ठीक है, बट वील हैव टू कवर दिस ऑल्सो. ठीक है, तो गगनयान टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे थे. ठीक है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा सा गगनयान के बारे में. ठीक है, रिसेंटली इनिशियल रिकवरी ट्रायल्स ऑफ क्रू मॉड्यूल भी इसरो ने कैरी आउट किए हैं. इसरो के बारे में बात करें तो ये 1969 15 अगस्त को फॉर्म हुई थी, इंडिपेंडेंस डे के दिन, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, बेसिकली आपको इसरो का विजन पता ही है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है. लॉन्च व्हीकल वेरियस सेंटर्स आपको पता है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में है. ठीक है, और डिज़ाइन डेवलप कहाँ की जाती हैं, UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में. यू शुड नो दीज नेम्स एटलीस्ट. ठीक है, गगनयान मिशन के बारे में आते हैं जल्दी से, जल्दी फिनिश करते हैं. ये मिशन बेसिकली डेमोन्स्ट्रेट करेगा इंडिजिनस कैपेबिलिटी टू अंडरटेक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट टू लो अर्थ ऑर्बिट. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसमें और कुछ बताने की बात नहीं. बस व्योम मित्रा को आप याद रखिए, ये एक ह्यूमन रोबोट है, इसको बोलते हैं ह्यूमनॉइड, जो कि भेजा जाएगा मतलब ऑन बोर्ड द क्रू. ठीक है, यू शुड नो दिस, यू शुड नो दिस थिंग. गगनयान मॉड्यूल्स क्या क्या है. क्रू मॉड्यूल है जो कि एक हैबिटेबल पार्ट होगा, जिसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम होगा, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमंस होंगे, मतलब हमारे जो एस्ट्रोनॉमर्स होंगे वो होंगे उसमें, इट वुड सपोर्ट लाइफ. देन देर इज सर्विस मॉड्यूल, जिसमें प्रोपल्शन सिस्टम, पावर सिस्टम, ये सब आएगा. देन देर इज ऑर्बिटल मॉड्यूल, जो कि अर्थ को ऑर्बिट करेगा. इट वुड नॉट कंटेन ह्यूमन, मतलब इट वुड नॉट हैव ह्यूमंस, इट वुड बी इन क्रू मॉड्यूल, जहाँ पे हमारा क्रू रहेगा उसको बोलते हैं क्रू मॉड्यूल. ठीक है, तो यू शुड नो दिस, हमने आपको पहले बता दिया है. क्रायोजेनिक स्टेज है इसमें, एक लिक्विड स्टेज है, एक सॉलिड बूस्टर स्टेज है. दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, सो वी कैन स्किप दिस पार्ट. Chandrayaan 3 also I have told a bit, we have already discussed this part. The Chang'e 1 is of China, Hiten is of Japan, USA की लोन we have discussed this, USSR की also we have discussed. Israel की bear sheet, you should know this. Other things to be discussed is this. चंद्रयान का मेन जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो ये रहेगा, टू डेमोन्स्ट्रेट सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन ल्यूनर सरफेस. ठीक है, टू डेमोन्स्ट्रेट रोवर रिवॉल्विंग ऑन द मून. ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है चंद्रयान 2 में क्या क्या था. ठीक है, विक्रम लैंडर था हमारा, जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाया था. रोवर प्रज्ञान था, इट ऑल्सो कंटेन ऑर्बिटर. ठीक है, एंड आइडेंटिफाई किया इसने आर्गन 40, हमने पहले डिस्कस किया. इट ऑल्सो डिटेक्टेड क्रोमियम एंड मैग्नीज. ठीक है, सब सरफेस वाटराइज डिटेक्ट किया है. इसी तरीके से चंद्रयान 1 ने वाटर डिटेक्ट किया था, हाइड्रोक्सिल आयंस डिटेक्ट किए थे मून के सरफेस पर. ठीक है, तो यू शुड नो दिस थिंग. और कुछ आपके लैंडर मॉड्यूल में कौन से पेलोड्स रहेंगे, रंभा, दिस थिंग, इल्सा, यू शुड नो दीज नेम्स एटलीस्ट. देन देर इज लेज़र रिफ्लेक्टोमीटर अरे. ठीक है, रोवर मॉड्यूल में क्या रहेंगे, लिप्स, दिस लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप. देन देर इज APX अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर. यू शुड जस्ट नो दीज नेम्स, क्विक गो थ्रू दीज नेम्स. ठीक है, लॉन्च व्हीकल कौन सा यूज, दिस इज इंपॉर्टेंट, GSLV Mark 3. ठीक है, और इसकी कैपेसिटी हमने पहले देखी है, पहले हम पढ़ चुके हैं. सी इट इज़ अगेन रिपीटिंग, दैट इज़ व्हाई आई एम कवरिंग दिस पार्ट विद along with this extended updated part or extended part of PT 365 along with the first part or the main module of PT 365, because again things are repeating, as they are again in news they have covered it again. So just I am repeating, I am just going through it so that it does not waste your time to again go through updated part separately. अगर उसके लिए सेपरेट से वीडियो बनाएंगे it would consume your time, so just to save your time we are going through it in a single video. ठीक है, नेक्स्ट है वाई द साउथ पोल ऑफ द मून इज चूजन. अच्छा, साउथ पोल पे क्यों लैंडिंग करानी. पहली बात तो ये शैडो एरिया इसका लार्जर है नॉर्थ पोल के कंपैरेटिवली. ठीक है, जो मून का नॉर्थ पोल है उसके कंपैरिजन में इसका शैडो एरिया ज़्यादा है साउथ पोल मून का. तो इस वजह से, क्योंकि शैडो एरिया ज़्यादा, तो वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ वाटर होने की संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज ज़्यादा हैं. नेक्स्ट, वहाँ पे जो क्रेटर्स हैं दैट आर कोल्ड ट्रैप्स, और वहाँ के फॉसिल रिकॉर्ड्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे. ठीक है, सोलर सिस्टम के अर्ली फॉसिल रिकॉर्ड्स. इसके अलावा वहाँ पे हम अनटैप्ड रिसोर्सेज को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मरकरी, सिल्वर एक्सेट्रा. इनके पोजिशनल एडवांटेज ये हैं कि इट मेक्स सूटेबल
टू पिट स्टॉप फॉर फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन। ये मैं आपको पहले डिटेल में समझा चुका है इनिशियली कि कैसे हम मून को एज अ स्टॉपेज पॉइंट है, एज अ पेट्रोल पंप टाइप जैसे हमारा गाड़ी का होता है ना, इसी फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए हम पिट स्टॉप की तरह यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है दिस क्रीप। व्हाट इज दिस क्रीप स्टैंड्स फॉर? इट इज़ बेसिकली एन एक्रोनिम फॉर प्लेस दैट हैज डिपॉजिट्स ऑफ पोटेशियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, फोस्फोरस। ठीक है, लूनर सरफेस मून पे। ठीक है, जस्ट नो दिस थिंग। मूव ahead. What is this निसार सैटेलाइट? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ नासा एंड इसरो। ऑलराइट, नासा इसरो की सिंथेटिक अपर्चर रेडिएशन, एन से नासा, आई से इसरो, सार से सिंथेटिक अपर्चर रेडार सैटेलाइट को कहते हैं निसार सैटेलाइट। इसका काम क्या है? ये बेसिकली लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी है, लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी है जो कि नासा और इसरो ने साथ बनाई है। ठीक है, इट विल मैप द एंटायर ग्लोब इन 12 डेज। 12 दिन में पूरे ग्लोब को मैप कर देगी। ठीक है, तो मैपिंग आपको पता है क्या एडवांटेजेस रहेंगे, आपको पता होना चाहिए। इसमें एल बैंड रेडार यूज़ हुए हैं और एस बैंड रेडार यूज़ हुए हैं। एल बैंड में क्या फीचर्स होते हैं? उसकी वेवलेंथ होती है 15 से 30 मीटर और उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 1 से 2 गीगाहर्ट्ज़। इसके अलावा एस बैंड जो रेडार्स होते हैं उसकी वेवलेंथ होती है 8 से 15 सेंटीमीटर और उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 2 से 4 गीगाहर्ट्ज़। अगर आपको एक कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप बस ये याद रखिए, जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। और ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, या वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इस तरीके से कहें। अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। ऑलराइट, ये बेसिक साइंस का फिजिक्स का फंडा है, आपको उसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ऑलराइट, तो हमने ये देख लिया। नेक्स्ट इसरो के कुछ और कोलैबोरेशन, जैसे नासा के साथ कोलैबोरेशन था, इसी तरीके से इसरो के और कोलैबोरेशन देख लें। फर्स्ट इज मेगाट्रॉपिक्स, इट इज़ विद फ्रांस। व्हाट डज इट डू? ये बेसिकली ट्रॉपिकल एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट चेंज को स्टडी करता है। ठीक है, देन सरल, इट इज़ विद अगेन विद फ्रांस, इट स्टडीज ओशन। ठीक है, ल्यूपेक्स, इट इज़ विद जाक्सा और जापान। याद कैसे रहेगा? जाक्सा है ना, जाक्सा में एक्स आता है, ल्यूपेक्स में एक्स आता है। तृष्णा इज अगेन विद फ्रांस। ठीक है, तृष्णा इज ऑल्सो एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है, इट इज प्लान्ड, दीज टू आर प्लान्ड एंड दीज टू हैव ऑलरेडी बीन लॉन्च्ड। मेगाट्रॉपिक्स एंड सरल हैव ऑलरेडी बीन लॉन्च्ड, ल्यूपेक्स एंड तृष्णा आर प्लान्ड। तो यू शुड नो अबाउट दिस। ठीक है, ये निसार का आपको पता है क्रियोस्फेयर ट्रैकिंग में काम आएगा, इकोसिस्टम रिसोर्स ट्रैकिंग में, डिजास्टर जो भी है, सिंथेटिक अपर्चर रेडार या मैपिंग के लिए जो बेनिफिट्स होते हैं ना, सिग्निफिकेंस होते हैं, दैट इज वेरी मच ऑब्वियस, प्रिटी ऑब्वियस, दैट इज आई एम मूविंग अहेड विद दिस। हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट, हमने साउंडिंग रॉकेट देख लिया। इसी तरीके से हाइब्रिड साउंड देखिए ये रिपीट हो रहा है ना। इफ आई वुड बी, अगर मैं अलग वीडियो में कवर करता आई वुड हैव बीन टेलिंग यू अगेन इन डिटेल, बट अभी मैंने आपको बता दिया साउंडिंग रॉकेट क्या होते हैं, क्या काम करते हैं। तो बस आपको पता होना चाहिए, हाइब्रिड रॉकेट वो होते हैं जो कि डिफरेंट प्रोपेलेंट यूज़ करते हैं, एक सॉलिड और एक लिक्विड। अगर सिंगल प्रोपेलेंट यूज़ कर रहे हैं तो नॉर्मल साउंडिंग रॉकेट है। अगर वो डिफरेंट सॉलिड और लिक्विड दोनों यूज़ कर रहे हैं, क्रायोजेनिक भी यूज़ कर रहे हैं, देन इट वुड बिकम हाइब्रिड। ठीक है, बाकी ये कवर हो चुका। रोहिणी RS-200 हम कवर कर चुके हैं। जुपिटर के मून हम कवर कर चुके हैं। सी इट इज़ अगेन रिपीटिंग। लो हमने कवर किया था, गैनीमीड, कैलिस्टो। ठीक है, ठीक है, it has 92 moons. Remember this was not covered. Remember this thing, 92 moons. All right. Quasar क्या होता है? It is a new study has found that dwarf planet Quasar has Saturn-like ring of dust and debris that defies rules of physics. ये dwarf planet है। अच्छा, dwarf planet फिर क्या होता है? dwarf planet होता है ऐसी celestial body जो कि sun को orbit करती है और उसके पास has enough mass to assume a nearly round shape बट हैज़ नॉट क्लियर द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट। मतलब देख रहे हैं, इसने अपने नेबरहुड क्लियर नहीं किया। अर्थ के नेबरहुड में आपको ऐसे नहीं मिलेगा। ठीक है, इट इज़ अनेबल टू क्लियर इट्स नेबरहुड ड्यू टू लैक ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो इस वजह से इस राउंड शेप है बट इज नॉट कम्प्लीटली राउंड। इट इज़ सेलेस्टियल बॉडी, इट ऑर्बिट सन प्लैनेट की कुछ फीचर्स पूरे करता है, बट एज इट डज नॉट कम्प्लीटली कंप्लीट ऑल द फीचर्स ऑफ प्लैनेट, सो इट इज़ नोन एज ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है, ये पता होना चाहिए, यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। इट कैन ऑल्सो आस्क व्हाट इज दिस क्वार, रोज डिस्कवर इन क्वार, हाउएवर यू प्रोनाउंस यू में, बट आपको यू पता होना चाहिए ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है। यू शुड नो दिस थिंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका RR लायरा स्टार्स। ठीक
ठीक है। मोर देन 200 डिस्टेंस वेरिएबल स्टार्स नोन एज RR Lyrae stars discovered in Milky Way stellar halo, a spherical cloud of stars surrounding the galaxy। ठीक है, ये क्यों जाने जाते हैं? फॉर द ब्राइटनेस, देयरफॉर हेल्पिंग इन मेजरिंग डिस्टेंस। इतने ब्राइट होते हैं इस वजह से इजीली देयर डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड। ठीक है, गैलेक्सी मैंने आपको पहले समझा दिया। ठीक है, मीटेरॉइड्स क्या होते हैं? देखो मीटेरॉइड्स क्या होते हैं, मीटेरॉइड्स क्या होते हैं जल्दी से देखिए। रेंज मतलब जो डस्ट ग्रेन और स्मॉल एस्टेरॉइड्स के बीच की डिस्टेंस होते हैं ना, उसमें होते हैं मीटेरॉइड्स। ठीक है, मीटेरॉइड्स जब अर्थ की एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं तो वो जल जाते हैं, तो जलते हुए जो हमें दिखते हैं दैट इज नोन एज मीटियोर्स। और अगर वही मीटेरॉइड्स हमारी अर्थ तक पहुंच जाते तो उसको बोलते हैं मीटेरॉइड। ठीक है, मीटेरॉइड अर्थ तक पहुंच गए, मीटेयर जल गए। ठीक है, दिस बर्निंग स्टार टाइप का आपको दिखता है ना। मीटेरॉइड्स आर ऑब्जेक्ट इन स्पेस दैट रेंज इन साइज फ्रॉम डस्ट ग्रेन टू स्मॉल एस्टेरॉइड्स। ठीक है, इसको बोलते हैं मीटेरॉइड्स। ठीक है, ऑबराइट मीटेरॉइड इस तरीके एक मीटेरॉइड का नाम है, आपको यू शुड नो दिस थिंग। स्मॉल मैगेलेनिक क्लाउड क्या है? नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप हैज फाउंड अ स्टार फॉर्मेशन। ठीक है, विद दिस नेम यू शुड नो दिस ओनली। ऑलराइट, नेक्स्ट इज वोल्फ। व्हाट इज दिस? वुल्फ 1069b। इट इज अगेन एन एक्सोप्लैनेट, जैसे वास्प 96b हमने देखा था। ठीक है, शुक्रयान क्या है? शुक्र वीनस को कहते हैं हिंदी में। इट इज मिशन 2021 तक के डिले कर दिया गया। इट इज इसरोज वीनस मिशन, यू शुड नो दिस। शुक्रयान इज रिलेटेड टू वीनस। ठीक है, यू शुड नो दिस थिंग। सॉलिटरी वेव क्या? इंडियन साइंटिस्ट रिपोर्टेड फर्स्ट एविडेंस प्रेजेंस ऑफ सॉलिटरी वेव इन मार्शियन मैग्नेटोस्फीयर विद द हेल्प ऑफ डेटा रिकॉर्डेड बाय मेवन स्पेसक्राफ्ट। नासा का है मार्स मिशन के लिए। ठीक है, और सॉलिटरी वेव जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या है? ये डिस्टिंक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्चुएशंस हैं दैट फॉलो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड फेज रिलेशन। ठीक है, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्चुएशंस, यू शुड नो दिस थिंग। ठीक है, कहाँ पे डिटेक्ट हुई है? मार्शियन एटमॉस्फेयर में। किसने डिटेक्ट किया है? मेवन स्पेसक्राफ्ट ऑफ नासा, जो कि मार्स का मिशन है नासा का। ठीक है, अच्छा वीनस की बात की हमने शुक्रयान की, तो वीनस के बारे में देख लेते हैं। वीनस इज वेरी मच लाइक अर्थ, तो इसको बोला गया अर्थ का ट्विन, यू शुड नो दिस थिंग। ठीक है, it is similar size but space probes have discovered that the environment that is actually quite inhospitable। मतलब साइज तो सेम है भाई, लेकिन रहने लायक हॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट है नहीं वीनस का। वहाँ पे 96 लगभग 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड है और 3.5% नाइट्रोजन और प्लस और गैसेज हैं। ठीक है, इतना थिक एटमॉस्फेयर है वहाँ का। ठीक है, यू शुड नो दिस थिंग। सरफेस कंडीशन, एयर प्रेशर 90 टाइम्स है वहाँ अर्थ से। ठीक है, टेम्परेचर कितना है? 465 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे? ह्यूमन कैन नॉट सर्वाइव देयर। विंड्स कितनी चलती है? 220 माइल पर आवर। ठीक है, 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती हैं। यू शुड नो दिस थिंग। वीनस की डायमीटर इज स्लाइटली स्मॉलर देन अर्थ, स्लाइटली स्मॉलर। ठीक है, एंड ग्रेविटी इज अराउंड 0.9 दिस, हाँ दिस ग्रेविटी ऑफ अर्थ से 0.9 है। ठीक है, 0.9 टाइम्स है अर्थ के, 0.9 टाइम्स ग्रेविटी है वीनस की। यू शुड नो दीज थिंग्स अराउंड वीनस। ठीक है, वीनस के बारे में आपको ये बातें पता होनी चाहिए। जो वीनस पे एक तो ये आपका हो गया, शुक्रयान इंडिया का हो गया। ठीक है, व्हाट आर अदर प्रोग्राम्स? वेनेरा प्रोग्राम रशिया का है। अकात्सुकी यू कैन प्रेडिक्ट इट इज़ ऑफ जापान। वेरिटास और वीनस एमिसिविटी, रेडियो साइंस, इनसार, टोपोग्राफी, मरीनर, ये सब नासा के हैं। एनविजन, एन से क्या है? यूरोप, आप ऐसे डिकोड कर सकते हैं। एनविजन मिशन किसका? यूरोप का। मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है, तो यू शुड नो दिस थिंग। अच्छा, वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन किसने बनाया? अग्निकुल कॉस्मोस, एक स्पेस टेक स्टार्टअप है। हमने स्टार्टिंग में अग्निकुल के बारे में पढ़ा था। सो दिस हैज ऑल्सो डेवलप वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। 3D प्रिंटिंग क्या होती है हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। सो सी ऑल थिंग्स आर कनेक्टेड। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग वन थिंग इट वुड इवेंचुअली हेल्प इन सम अदर लेक्चर और सम अदर टॉपिक। सो रिमेंबर दीज थिंग्स एंड इट वुड ऑल्सो हेल्प यू इन योर एग्जाम इवेंचुअली। मोटिव क्या है हमारा? मोटिव है हमारा कि एग्जाम में मार्क्स स्कोर करना, कट ऑफ क्रॉस करना। ठीक है, देन विल फोकस ऑन मेंस लेटर। ठीक है, अग्निलेट इंजन विल पावर द कंपनीज लॉन्च व्हीकल अग्निबाण, ये हमने पहले देखा, विच कैन कैरी पेलोड्स ऑफ अप टू 300 kg टू लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। अटाकामा लार्ज मिलीमीटर एल्मा, दिस टेलीस्कोप यू शुड नो। इसने रिसेंटली हैज डिटेक्टेड एन एल्यूसिव ब्लैक गैलेक्सी डब्ड इनविजिबल गैलेक्सी यूजिंग एल्मा। ठीक है, ये इटली में रिसर्च टीम इटली में एक रिसर्च टीम ने ये डिटेक्ट किया है। ठीक है, अल्मा किसका है? इट इज़ एन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ऑफ नासा
यूरोप, जापान एंड कनाडा, यूएस, ठीक है। तो ये इतनी कंट्रीज़ का कोलैबोरेशन है। एंड इट डिटेक्ट्स वेव फ्रॉम इंफ्रारेड लाइट एंड रेडियो वेव्स, ठीक है। ऑलराइट, दिस थिंग अराउंड अ मिलीमीटर बिटवीन इंफ्रारेड लाइट एंड रेडियो वेव्स, ठीक है। यू शुड नो दिस थिंग। नेक्स्ट ये भी हमारा हो गया। लास्ट हमारा जो टॉपिक थोड़े से बच रहे हैं, दैट इज ऑफ अपडेटेड पार्ट 2। we'll go through that also and we'll finish space technology all together. Where is this space technology? These topics are left, we'll cover fast and fast. Alright, ISRO के बारे में हमने पहले ही देख लिया। ISRO is headed by Prime Minister, then there is Space Commission, then there is Department of Space, then there are multiple bodies. We have read about this. In space we have done NSIL, and Antrix was an old, it is not now, ठीक है। वी हैव रेड इन स्पेस ऑल्सो, ठीक है। वी हैव डन ऑल दीज थिंग। इसका हेडक्वार्टर का बेंगलुरु में। यू शुड नो दिस थिंग, अ लिटिल मोर फैक्ट्स यू शुड नो अबाउट दिस थिंग, ठीक है। जब प्राइवेटाइजेशन की बात करें, इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 क्या है, ठीक है। बेसिकली ये इंपॉर्टेंस जो प्राइवेट सेक्टर का, ये मैंने आपको पॉलिसी के नाम से नहीं, बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन बिगिनिंग कि इंडिया इज ट्राइंग टू प्रमोट प्राइवेट सेक्टर, तो उस वजह से इंडियन स्पेस पॉलिसी आई है, ठीक है। ये क्लैरिफाई करता है रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गवर्नमेंट की, प्राइवेट सेक्टर की और इसरो की, ठीक है। तो और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस की, दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट आर द रोल ऑफ दीज एजेंसीज, ठीक है। वी कैन skip this part as we have already discussed. INSPA also we have discussed, this also we have discussed, again repetitive. Space debris we have discussed, ठीक है। Project Netra we have discussed, this we have discussed. ISRO का system for safe and sustainable we have also discussed about safe space sustainability, ठीक है। ये ISRO का उसी में का है, for detecting, tracking and monitoring space objects we have also covered this also, ठीक है। Space debris we have done, ठीक है। Then comes this reusable launch vehicle autonomous landing mission. It is part of the गगनयान, क्योंकि गगनयान के थ्रू हमें वापस लाना है, तो that is why it is very essential for us to develop this technology, reusable launch vehicle autonomous landing vehicle, RLV LEX, ठीक है। दो second of the 5 tests that are part of ISRO's effort have been done, ठीक है। This you should know this. क्यों? क्योंकि हमें गगनयान में जो हम एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे उनको वापस भी लाना है, उस वजह से ये टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है, ठीक है। इट वुड ऑल्सो हेल्प इन लो कॉस्ट स्पेस ट्रैवल, ठीक है, रिलायबल, ठीक है। नेक्स्ट इज डार्क मैटर, वी हैव डन दिस ऑल्सो। डार्क मैटर जो इसमें से क्वेश्चन जहाँ से बनेंगे वो हमने कर लिया। आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वी हैव डन दिस थिंग। बिग बैंग मॉडल देख लेते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल यूनिवर्स स्टार्टेड विद अ वेरी डेंस एंड हॉट फेज एंड एक्सपैंडेड एंड कूल्ड इटसेल्फ, ठीक है। फॉर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स द टेम्परेचर वॉज सो हाई दैट न्यूट्रल एटम्स कुड नॉट फॉर्म। मैटर कंसिस्टेड मोस्टली ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्टेड क्लोजली विद द लाइट पार्टिकल्स एंड देयरफॉर लाइट एंड मैटर वर टाइटली कपल्ड एट दैट टाइम, ठीक है। लाइट एंड मैटर वर टाइटली कपल्ड, ठीक है। That is, light could not travel for a long distance in a straight line, ठीक है। Light could therefore not propagate and the universe was opaque. It took about this much years for the universe to cool down to a temperature at which atoms can form, about this much 3000, ठीक है। Matter then became neutral and allowed the light to travel freely. Then universe became transparent, ठीक है। That is what we have here. We have done this thing, dark matter we have done. We have done this dark energy, we have done this also. यहाँ पे हमने 70% डिस्कस किया था. It is around 70, 68, something like that. You do not need to go into such details. You just need to know the approximate model. We have done this thing also. Alright. JUICE mission क्या है? It is related to Jupiter's icy moon exploration, ठीक है। You should know this. It is of European Space Agency. You should know this also. Jupiter को हमने extensively cover कर लिया है. Jupiter के moons के बारे में हमने देख लिया है, ठीक है। ये कुछ और मिशंस हैं जो जुपिटर पे भेजे गए हैं. पायनियर, वोएजर, गैलीलियो, उलिस, जूनो, यूरोपा क्लिपर नासा के हैं. एंड ऐसा यूरोपियन स्पेस एजेंसी ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस, ठीक है. यू शुड नो दिस. जूस मिशन बेसिकली क्या है? इट विल मेक डिटेल ऑब्जर्वेशन अबाउट जुपिटर एंड इट्स 3 लार्ज ओशन बेरिंग मून्स, गैनीमीड, कैलिस्टो, यूरोपा. हमने 4 मून देखे थे. लो एक और था, इसके अलावा वो इसमें नहीं है एक्चुअली. देर आर 92 मून्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. सो वेरी मच अबाउट जुपिटर.
एंड यू शुड नो अबाउट जुपिटर, ठीक है। जुपिटर का ट्रोजन एस्टेरॉयड हैव बीन इन न्यूज, सो यू शुड नो अबाउट दिस। नासा का स्पेसक्राफ्ट जो लूसी है हैज कैप्चर्ड इमेजेस ऑफ जुपिटर ट्रोजन एस्टेरॉयड फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। यू शुड जस्ट नो दिस। नासा का मिशन है लूसी, यू शुड नो अबाउट दिस। इट वाज द फर्स्ट स्पेस मिशन टू स्टडी द ट्रोजन्स, ठीक है। इसी तरीके से मल्टी एंगल इमेजर एरोसोल मिशन है। इट इज़ द स्टेट ऑफ आर्ट सैटेलाइट इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूसिंग डेटा दैट विल बी यूज्ड इन हेल्थ स्टडीज़, ठीक है। ये किसका है? नासा और इटालियन स्पेस एजेंसी का है। यू शुड रिमेंबर दिस थिंग। इसके अलावा टेम्पो इंस्ट्रूमेंट क्या है? टेम्पो इंस्ट्रूमेंट नासा का, अगेन दिस इज ऑफ नासा, टू मॉनिटर एयर पोल्यूशन फ्रॉम स्पेस। टेम्पो इज रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन, यू शुड नो दिस। ईल्स, ईल्स किसका? इट इज़ अगेन नासा इज डेवलपिंग स्नेक लाइक रोबोट, ईल की तरह, जैसे ईल होती है ना, उसी पे नाम पड़ा है। ईल्स विच कैन बूस्ट स्पेस एक्सप्लोरेशन थ्रू इट्स डाइवर्स अडेप्टेबिलिटी टू वेरियस टेरेन्स। मतलब हम दूसरी जगह पे भेज रहे हैं तो वहाँ के टेरेन्स अलग होंगे, तो उस अपने आप को डेवलप अडाप्ट कर लेगी। इस वजह से ईल के स्ट्रक्चर में हम ये नासा एक्चुअली एक रोबोट बना रही है, ठीक है। पोएम 2 वी हैव डिस्कस पोएम, देन देयर इज पोएम 2। क्या करेगा? इसरो कैरिड आउट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट यूजिंग पोएम 2 इन PSLV C55 मिशन, ठीक है। पोएम 2 हमने क्या देख लिया था पहले ही, नेविगेशन गाइडेंस कंट्रोल सिस्टम है बेसिकली, जो कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ठीक है। अदर स्पेस ऑब्जेक्ट्स एंड फिनोमेना क्या है? कैसियोपिया ए, इट इज़ अबाउट नासाज जेम्स वेब टेलीस्कोप, जिसने की रिवील किया डिटेल्स ऑफ कैसियोपिया ए, ठीक है। ये क्या है? इट इज़ अ रेमिनेंट ऑफ सुपरनोवा एक्सप्लोजन सिचुएटेड इन कॉन्स्टलेशन कैसियोपिया, ठीक है। दिस यू शुड नो, ये एक कॉन्स्टलेशन है, जस्ट यू शुड नो दिस। और ये ये इतना कॉन्स्टलेशन है, ए अगर लग गया आगे देन इट वुड बिकम रेमिनेंट ऑफ अ सुपरनोवा एक्सप्लोजन, ऑलराइट। GN-Z11 गैलेक्सी क्या है? इट इज़ अ कॉम्पैक्ट गैलेक्सी कंटेनिंग डेंस मैटर लोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली 32 बिलियन light years away from Earth. This you should know, only this much is sufficient. Then there are terminator zones. What are these terminator zones? ठीक है, you should know this. The terminator zone is a ring on planets that have one side that is always facing its star and one side that is always dark, ठीक है। तो रिंग्स और प्लैनेट पे ऐसी रिंग जो कि एक साइड जिस हमेशा स्टार को फेस करेगी और एक साइड डार्क रहेगी, दैट इज नोन एज टर्मिनेटर जोन, ठीक है। क्वाज़र क्या होते हैं? क्वाज़र आर वेरी ब्राइट डिस्टेंट एंड एक्टिव सुपर मैसिव ब्लैक होल्स, ठीक है। क्वाज़र बेसिकली हमने ब्लैक होल देखा था, सुपर मैसिव ब्लैक होल देखा था जो मिलियन टाइम्स थे सन के, ठीक है। बेसिकली क्वाज़र्स वही होते हैं दैट आर मिलियन टू बिलियन टाइम्स ऑफ, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, व्हाट आई हैव बीन टेलिंग इज रिटन। Very bright distance and active supermassive black holes that are million to billion times of mass of sun, all right। कोरोना होल्स हमने देख लिया। स्टारएक्स स्टारशिप है, ये स्पेस एक्स एजेंसी, ठीक है, यू शुड नो अबाउट दिस। इट स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट एंड सुपर हेवी रॉकेट कलेक्टिवली रिफर टू ए स्टारशिप रिप्रेजेंट अ फुली रीयूजेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ये रीयूजेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, यू शुड नो दिस। इट इज लॉन्च बाय स्पेसएक्स, इट इज अ प्राइवेट एंटिटी, ठीक है। स्पेसएक्स इज अ प्राइवेट एंटिटी। इट इज़ डिज़ाइन टू कैरी बोथ क्रू एंड कार्गो, मतलब इसमें ह्यूमन फ्लाइट भी हो सकती है, यू शुड नो अबाउट दिस, ऑलराइट। हाउ मच थिंग्स, जस्ट 2 topics are left, we'll cover it and we'll wind up this session which has nearly of 2 hours, it has become 2 घंटे का लगभग हो चुका है। pellet beam propulsion क्या है? pellet beam propulsion system could theoretically beam a heavy spacecraft to outside the confines of our solar system in less than 5 years, ठीक है। pellet boom का कॉन्सेप्ट जो है, इट वॉज पार्टली इंस्पायर्ड बाय ब्रेक थ्रू स्टार शॉट इनिशिएटिव विच इज वर्किंग ऑन अ लाइट सेल प्रोपल्शन सिस्टम, ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट इज दिस क्रायोजेनिक इंजन और क्रायोजेनिक स्टेज, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, सो वील वाइंड अप दिस थिंग। इट इज वन ऑफ द स्टेजेस बेसिकली of launch vehicles, all right, just like solid and liquid stages. It is also used as a propellant at extremely low temperature. Just remember this, cryogenic is used at a very low temperature, remember this thing, all right. So we'll wind up this session and we'll meet up in next session, most probably tomorrow, and we'll cover some more topics, all right. Thank you for watching.